नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Namaskar, Swagatam. We would like to welcome you all on 410th milestone of brainstorming scientific knowledge sharing journey, Ayush Samriddhi International Webinar Series, web conference series rather, we can say. I would like to welcome Dr. V.K. Agnihotri sir. I would like to welcome Professor Vishnu Prasad Sharma ji. I would like to welcome Professor Madan Thangvelu sir. Welcome sir from Cambridge. I welcome today's speakers. Madam Parul Joshi ji, welcome. Vaidya Piyush Kumar Dwivedi ji, welcome. And our third speaker, Vaidya Pragyan Tripathi, will be joining soon. But senior expert, Dr. Rampal Somani ji is with us. Somani ji, Swagatam. Vaidya Jayesh Thakkar ji, you're most welcome. And our team, Preeti. So now, without wasting much time, today we have our series on time-tested treasure series. As I am focusing on generally Upavisha, so previously we were discussing last week on Kamini Vidramanas, which was containing hyphen in that, and today Pushpadhanwa Rasa. This is again one ingredient, Vijaya Bhanga Matulani, Madhini Madhkarni. So that is the ingredient of cannabis, is the ingredient of Pushpadhanwa Rasa, aphrodisiac, erection stimulator, erection toner, as well as remedy for premature ejaculation. We would like to listen from experts. So without wasting much time, I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma sir, President Vishwa Ayurved Parishad Assam and former Principal Government Ayurvedic College Guwahati, for his kind welcome address. Welcome, sir. Okay, thank you. Good evening. Namaskar to everybody. Respected Professor Madan Thangvelu ji, respected Professor V.K. Agnihotri ji, respected Dr. Pawan Kumar Sharma ji, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. Today we have one important webinar on Pushpadhanwa Rasa. It is the most important subject. Today we have eminent speaker, Dr. Piyush Kumar Dwivedi from Kolkata, Vaidya Parul Joshi from Gandhinagar, Dr. Pragyan Tripathi from Ujjain. I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this important evening webinar on Pushpadhanwa Rasa. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, consultant, Professor Department of Chikiৎসা, welcome all of you once again to this evening webinar. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you for your kind blessings and welcome. Now I would like to request humbly Professor Madan Thangvelu sir for his excellent moderation. Welcome, sir. Welcome. Onji Namaskar. Thank you for bringing us all together on the 410th webinar. I am in Bhopal, sir. You are in Bhopal, and you are in the Vedic city of Bhopal today. Right, sir. And right, sir. It is said that the Vedic city of Bhopal will never, it is a city that is almost 1,000 years old. And it is said that this city was constructed based on Vedic principles. And one of the important points is that there should never be a shortage of water in this city. And this is what they say. There are two big lakes in Bhopal, and the city never has a water shortage. And this is at a time when the world is facing major challenges with water.
And in this way, it also connects with our webinar today, in that there are many aspects from the ancient systems that take us into formulations that, as Pavanji calls it, the time-tested formulations. And in this series, this is the second of our such formulations. The formulation that we are going to discuss today is a very fascinating one. It has certain ingredients that are very unusual. It has, which are unusual for people who are not familiar with Rasashastra, and particularly people from the Western medicine side. Our ingredient of this fascinating Ras Aushadhi has Rasa Sindoor, Nag Basma, Lahu Basma, Abrak Basma, and Bang Basma. So, and it's been used in formulations. It has been used for a very long period of time and very effectively. So we look forward to learning from our presenters today on their experiences with this formulation and what we can learn from, whether there are aspects that need refining, whether there are individual to individual level differences in this formulation, dosages, etc. These are all areas, as we come to the future of Ayush systems the world over, these might become very important formulations. So I look forward to learning from our speakers. And then as we go along, I would raise one or two key points here, particularly the developments in Jamnagar, the World Health Organization Global Center for Traditional Medicines, and what kind of dialogues our presenters would like to have with this global center, and how to engage, how to bring in a better narrative about Rasa Aushadhis. So with those few words, I leave it with Pavanji. Pavanji, thank you, Ji. Thank you, sir. Thank you. Now I would like to invite Dr. Piyush Kumar Dwivedi. Welcome, Dr. Piyush. He is physician of governor also here. He is roaring practitioner and Nadi Guru also in West Bengal. So he is treating his patients by diagnosing the disease by Nadi. So welcome, Dr. Piyush. Piyush ji, welcome back. Bahut dhanyawad ji. Very happy to have you back on our platform. Namaste to everyone and Jai Hind. Thank you. The heartiest respect to all my seniors and elders, touching their feet with their blessing and the blessing of Guru and the blessing of Dharmantari. It is not Dr. Piyush Dwivedi, it is your blessings which is doing work and healing the patient in a holistic way. And as a clinician, as a practitioner, you all have given me this opportunity to present this wonderful, I think I should call it wonder drug, Pushpadhanwa. And so I'm feeling honored because I have been chosen to explain the clinical aspect, what I have experienced in my life. Because whatever I'm going to say, this is not only theoretical, whatever I have experienced in my life, by the application of Pushpadhanwa in different cases, with your permission, I would like to explain it in front of you or express it in front of you. So, as Pushpadhanwa, I would first like to explain the philosophical aspect, how the nomenclature is very important in Ayurveda. Because it's not like the Western culture. In India, each and everyone, whether this is medicine or any human being, whoever have got any name, it has some purpose behind it, and that's why in our culture, nomenclature is very important. So the drug itself, by its name, indicates its action and its results. So as the name is Pushpadhanwa, so just for the information, it is one of the synonym of Kamadev. I think we all are aware of this Devata in our culture. Kamadev is a symbol of excitement and desire for Rata. So Pushpadhanwa Ras is once we are getting one indication as it is stimulator.
So it will enhance our desire and libido, and it is an enhancer. Second thing, if we see it from a different aspect, Pushpa and Dhanwa. Pushpa, that when seed becomes plant, and then after this it becomes a flower, and flowering is an action. So it will spread the fragrance all around, and Dhanwa means rich. So Pushpadhanwa basically is the medicine which is used for all kinds of bija dosha in case of male and female both. So especially the structure related problems where the any kind of gynecological organs in female, whether this is fallopian tube or ovary or uterus which has not been developed, this medicine has the power to develop all these things. In case of male also, it will help in the development of all the seeds and spermatogenesis, spermatozoa formation and transportation also. So when we are coming to the ingredient, there is wonderful combination of the ingredients. Number one ingredient is Rasa Sindoor, as you all know, and the sir was mentioning earlier. So first ingredient is Rasa Sindoor. According to Ayurvedic philosophy, Rasa Sindoor is basically 3 dosh nasak, and the main action is to for the Vata Niyaman. It will direct the direction of Vayu in a proper way. So second is the Naga Bhashma, which is again 3 dosh nasak, and especially Kapha Vata nasak, but it is again 3 dosh nasak. So we'll see ultimately some common things. And third one is Bhanga Bhasma. It is specially Kapha and Vata balancer, but it is very Pushtikar, and it is Garbhasaya Chutikar, where the Garbhasaya has been displaced from any organ, or where we need the support to hold or to restore the things. There Bhanga Bhasma is very important. It is also very good enhancer of Agni also. Kama Vardhak. Lava Bhasma is Kapha Pitta Hara, and it is Medhya, Vrishya, and it is specifically indicated in Gudarog also. And the last main ingredient is Abrak Bhasma, which is a Rashayan, again 3 dosh nasak, Sarva Dhatu Poshak, and it is a medicine which is Vatagana. So when we are concluding all this Bhasma, we can see that all the Bhasmas are 3 doshagna, Vata Niyamak, and Kapha Pitta balancer. So as we know, in Yoni Rog, any kind of Yoni Rog, main culprit is Vayu, along with the 3 doshas, no problem. So this is a wonderful combination, and all the Bhasma is Rashayan, and all the Bhasma is Pushtikara. So, and the most wonderful thing of this medicine is the Bhavana Dravya, where the first ingredient is Dhatura, which is Vyavai, Vikasi, Lagu, and Ruksha. So it has Kapha Vata, Shamak property. Second ingredient is Bhang, so which is Ushna in Virya and Katu in Vipak. So that's why it is Madak, but it is Vata of Samak. Third ingredient, third and fourth is similar, like Yasti Madhu and Shalmali. Both are Madhur, but both are Vata Pitta Shama. And Nagavalli, this is Kapha Vata Shama. So here we can see that this drug is specifically prepared with 2 purposes. Number one is it is a Rashayan, and number 2 is it will help in regeneration of anything, especially related to the gynae or reproductive system of the male and female. Second most important thing is it also balances the psychological aspect of the brain. So in this way, we can see when we are applying this medicine, it is not only helping to correct the structural problem, not only it is helping to correct the symptoms, but it will also help for the purpose of Roga Apunarbhava. So it will prevent the relapse also by acting as a Rashayan, and as well as acting on the Mana and the mind. So here I am sharing the exact clinical experiences. So number one is it is a wonderful medicine for PCOD,
This is a very major and common problem nowadays. So in case of PCOD, what is the specific role of Pushpadhanwa Rasa? So Pushpadhanwa Rasa can cure the PCOD. Along with this, it will wonderfully control the psychological aspect of the which is happening during the course of PCOD, where the girls used to get some mood swings and all these things. So here it also controls the mood swings. It will balance the emotions and it will cure the PCOD. So number one. Number two, wherever there is no egg formation or where there is low AMH, so it can increase the AMH. It can balance the FSH level also wonderfully. And in case of male also, it can balance the FSH, and in case of female also, it can increase the AMH level, and it will help for the egg formation. And where there is anovulation, it can also help. Infantile uterus, it can also help. Where there is ill-developed ovaries, it can improve and increase the ovaries also. So Pushpadhanwa Rasa is basically, it can regenerate the things. One special indication is when someone is very desirous of having sexual intercourse or such kind of things, but because of some reason, if that person is not able to perform it, they might get some insanity or they might get some sleeplessness. In that case, Pushpadhanwa Rasa is the drug of choice. It will induce a good sleep, and it can also restore the balance which has happened because of the incontinence. Second thing, just opposite is there. We have to take care about it, because if someone is doing brahmacharya, suppose forcefully someone is trying to follow the brahmacharya, and because of this, the person is suppressing his natural urges of kama. In that case, if he is getting sleeplessness, if we are giving Pushpadhanwa, in that case, it can give a reverse result. So we should avoid giving in that case Pushpadhanwa Rasa. Third is if someone is getting nocturnal emission, Shukra Meha, Lala Meha, in both these two cases, Pushpadhanwa is absolutely wonder. So it can improve the premature ejaculation also. One very important thing I want to share, that we should be very careful that if someone is having very low sperm count, at that case, Pushpadhanwa is a wonderful drug. But if someone is having normal sperm count, but the mortality is very less, in that case, Pushpadhanwa has no role. So it indicates that Pushpadhanwa can increase the amount of semen formation, but for quality of semen, we should use other drugs like Kapikachu or Atmagupta like this. So it is specifically to increase the number of counts, not for the quality. Pushpadhanwa Rasa. So this is my experience. And one very important aspect where we can use it specifically in case of female, when there is asthikshaya, when there is osteoporosis, and especially for those females, those who used to stay in villages and those who used to do a very hard work, where there is chayajane samprapti, they have white discharge and such kind of things. Along with this, they are getting crepitation sound in knee joints, and they are suffering from osteoporosis, and they are getting severe low back pain and crepitation sound in the knees. In that case, Pushpadhanwa Rasa can do much more wonderful results. So we should be very aware of dhatu, asti dhatu kshaya, where there is sandhi saithilyata because of aptarpanjane samprapti. In that case, especially in case of female, Pushpadhanwa Rasa is the drug of choice. And in case of bandhatya, it is also very helpful, especially in case of oligospermia. When we are giving Pushpadhanwa with Tambul Patrasaurus, it can do wonder. So I think Pushpadhanwa Rasa is a very good Rashayan, especially action on the psychological factors. It will heal the mind. It will tranquil the mind. It can induce good sleep, especially oriented with the sexual disorders. And one more thing, when there is Bhajabhanga, when someone is suffering from loose muscles of the linga, in that case, Pushpadhanwa Rasa is also very useful if we can give it with the Gokshura. So Pushpadhanwa with Gokshura or Gokshur Kwat
or a simple Gokshu tablet, it can increase the muscle power of that particular area, and one can get rid of this Dhwajabandha. So here we are getting, if I will make the conclusion, infertility of any origin, one. Number two, structural deformity, where there is malformation of uterus or ovaries, or where there is an ovulation, where there is egg is not not going under formation. So structural problem, number one. Number two is it can increase the quantity of the semen and the eggs, but not the quality. You should be remembered. It can reverse the case and roga apunarbhava. That means the case will not relapse again because it has Rasayan property and it is all the drugs are made there. So psychological problems with the gynae problems, this is the wonder. There is no any other substitute of Pushpadhanwa Rasa, and it is a very good stimulator also, and it is very good anti-aging also. It is a wonderful medicine for as an anti-aging. So anyone can take it if they want to take it as Rasayan and anti-aging. Pushpadhanwa Rasa can be used very, very nicely in Aptarpanjanya, Dhatu Kshayajanya, Asti Dhatu Shosha, or osteoporosis, where the female can get the pain. And as I explained, all the medicines of all the ingredients, all the bhasmas, all the bhavana dravyas are Rasayana, Tridosha-nasak, Vata Niyamak, Pitta Kapha balancer. So generally it has no side effect and anyone can take for longer time. But there is one suggestion from my little mind and my little experience. Please give it in a small dose for longer period of time. Don't give it in a higher dose for shorter period of time. Thank you. Piyushji, thank you. Dr. Piyush, thank you. Excellent. Madan sir. Piyushji, thank you very much. Yeah, before we go to our other speakers, I just want to highlight one or two points. That this recipe that we have is from Vaishyaji Ratnavali, Vajikarnadhikara. Am I correct? Because people are asking, people are a bit confused. Ki alag alag, there are different recipes available today, you know. So some people are saying Baidyanath has one recipe, Dudh Papeshwar has another recipe. What is this confusion? Could you just share a little bit about this? Yes, definitely. I would like to share one more thing because again you have given me one opportunity to share one wonderful experience. See what happens in our clinical practice. We used to see someone is getting more benefit at one doctor and same medicine is given by the another doctor and there is some different results. Basically, and patient also used to ask how this is happening. So there is one, I can start with the philosophy. After that, I will come to the science. As we have seen that our mother or our grandmother used to cook in their kitchen. Suppose my grandmother was cooking the paneer ki sabji very nicely. The same ingredient is being followed with my auntie, but the taste is not like that. Okay, so Ayurveda is completely a pakshala. It depends how we are preparing with the same ingredient, when we are putting the things, what is the level of agni in the paka, and when we are, so it depends on the quality, completely depend on the cooking. We have some problem that different acharyas at different time, they have come and experimented with some things. Like if we read Yadavji Trikamji, he is a wonderful, great pioneer and wonderful person. We are very much blessed to have him in our life. So what he has done wonderful things. He has added one, suppose Panchamrit Parpati. So he had added two more things into it, and it showed wonderful results. So according to the time, the things has changed, like the modern science, and they have included something and excluded something. What I was telling, it was the Rastarangini. Rastarangini. So where, because I have experience, suppose we are reading the Vaishyaji Ratnavali. There we can find out the proper name of the chapters like Vrikamaya. But in Charak Samhita or in Ashtanga, separately there is no mentioning of Vrikamaya. There is a separate chapter in Vaishyaji Ratnavali like Slomaro, the pen things.
The secret, which is the biggest problem in Ayurveda. Here, we generally used to say he has some secret medicine. This is nothing. You can believe me. We have made the Bhaishaj Ratnavali preparation, the Clomrog medicine, which is mentioned Sasi Sekhar Ras, exactly the way it is mentioned in the book. You won't believe, no single case has gone failure of chronic pancreatitis. It is not secret. It is written in the book. Unfortunately, no companies, no Dabur, Vaidna, Jhandu, no one prepares Sasi Sekhar Ras of Clomrog. No one prepares. Although this disease is incurable in case of as per modern science. Fine. So in the later period of the time where in 15th century, 16th century, 17th century, 18th century, lots of new like Firanga Rog, syphilis, gonorrhea, all has been introduced and the medicine has been mentioned and all do wonders. So we need to discuss together to explore the things. There should not be any secret, and we should be together to explore it. Piyush ji, thank you very much for elaborating this one point. क्योंकि हमारे साथ है Professor C.B. Jha साहब. He will talk about this later in the discussion. Please stay with us. I will let Pavanji take us to our next speaker, because this issue of formulations and details and how it has improved through the ages or different regions of the country, these are very subtle things which are which confuse people outside the community. So I leave this with you. Pavanji might be able to share a little more. Sir, I would like to answer this question, sir. Hanji, please. Pavanji. On behalf of my 3 decades experience, Please, yes. as we are well aware that every herb is not available in each and every altitude or area. So it was freely permitted to Vaidya it was dependent on his yukti that what ingredient he will or she will use for treatment. What happened? Vaidya from south, Vaidya from east, Vaidya from north and west. All Vaidyas were different at that time. But very true. But the names, because the name is based on the Sanskrit, and names are just indicators of its efficacy, its indications. Kamini Vidravan Ras for liquidation or Vidravan or Kamini, whatever we can say. Pushpadhanwa Ras. Pushpadhanwa is name of Kamdev. Pushpadhanwa Rati. So Pushpadhanwa, पुष्प का धनुष है हाथों में जिसके, तो मैंने भी पुष्पधनवा बंगाल में रह के नाम रख दिया. एक गुजरात में वैद्य हुए पहले 500 साल पहले, उन्होंने भी पुष्पधनवा रख दिया. भैषज कल्पना वाले ने क्या किया, भैषज रत्नावली वाले ने क्या किया कि सबका कंपाइलेशन किया. एक भैषज रत्नावली में एक ही चीज के 8-8, 10-10 योग मिलेंगे आपको. बृहत, महा, लघु और कई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, Ayurveda Yog Sagar. These are compilatory books. So they have given reference, they have quoted reference that it was formulated by so and so Maharshi, but this difference was meant on the principle that in which place the person has taken birth, the medicines of the same place will act better on him. This was the principle of our Ayurveda. But now, due to logistics and speedy transportation of medicine, this principle is now diminished, absolutely diminished. In West, I am taking South medicine. In South, they are taking North medicine. So this principle, so it means nobody is wrong. Everybody can quote any reference. If Dabur is manufacturing same Bhaishaj Ratnavali, next formulation, it is quite possible that Jhandu will make any other formulation available on Bhaishaj Ratnavali or available on Ayurveda Yog Sagar, Ras Ratnakar, whatever it may be. But these are compilatory books. Our Maharshi has compiled and various formulas. Chavanpras has approximately 37 formulations. So Maharshi Chavan Rishi was 1, but formulation is 37. That means they are modified by Maharshi in different times and different states. Both are important. Desh, Kal, Paristhiti. So this is my humble submission, sir. I would like to request now
for her blessings. Vaidya Parulji Joshi, Madam Parulji, Swagatam. Welcome, welcome. I hope your internet is stable. Yes, sir. I also hope. Welcome, welcome, welcome. I also hope. And let Lord Dhanvantari help us, because I wish Yes. to share many things, and I think I'll be able to Rahul ji, pranam. certain. Ji sir. Pranam ji. Pranam sir. I'll be Wow. able to highlight certain things, certain questions I'll be able to answer. That's what I feel, provided the internet helps me, sir. Good evening, everybody. I wish to talk on the importance of Pushpadhanwa Rasa in Ayurvedic gynecology practice. I have been very lucky to start practicing Ayurveda from my age of 18 years. I was only in second year BAMS. I didn't know even the anatomy, didn't know the physiology of the genitals. I didn't know what is semen, didn't know what is ovum. But my madam, thanks to her, I was able to start at a very young age. And so I could go a long way in the subject. Pradhanam Bishagatratu Tadanu Beshajam Chikisayam Pradhana Karan Bhutatvat. ऐसा चक्रदत्त ने बताया है. रस शास्त्र is a supportive branch to Ashtanga Ayurveda, all the 8 parts of Ayurveda, which have developed in medieval period, that is 8th or 9th century AD and onwards. This is as per the people we think that they are saying the right thing. We still are unaware of our history. So we have to go according to what the archaeology people say. As is said in Gujarati, the first bliss of life is health. So arogya prasamsha, dharmartha kama mokshanam, arogyam moolamuttamam, rogastasyapahartarah, shreyaso jivitasya cha. Health is very important as it helps us achieve all the 4 purushartha chatushtaya. It's dharma, artha, kama, and moksha. Why should I write this when there are scholars here listening to me? Dharma is not that tila tapka lagana, that is not dharma. Dharma is my duty. If I am a teacher, my duty is to teach the best I can. Artha is not this promissory note. Artha is jnana, the vivid, जो विविध कर्म हमें आते हैं, जैसे कि कारपेंट्री है, सोनी काम है, लोहार काम है, preparing wonderful instruments who are able to just tear the hair vertically, or a person who is able to drop oil from 2nd floor into a इत्र की जो बोतल है, उसका मुंह बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें हमारे पूर्वज जो है वो 2nd फ्लोर से तेल डाले तो एक ड्रॉप बाहर निकले बिना वो तेल सीधा ही बोतल में जाता था. वो भी एक क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोफिशिएंसी है, और वो हम गंवाते जा रहे हैं. काम जिसकी बात यहाँ पे हो रही है इज नॉट सेक्स. काम इज कामना. मेरी कामना है कि पुष्पधनवा रस के बारे में जो होना चाहिए वो ज्ञान सबके पास हो. वो मेरी कामना है. यहाँ पे सेक्स नहीं आता है. इट्स माय विश. और ये विश जो है वो हमेशा सात्विक ही होना चाहिए. अगर मेरी कामना ये है कि फला फला व्यक्ति जो है उसका ये नुकसान हो जाए तो मेरा ये काम बन जाएगा, तो वो गलत कामना है, और वो कामना हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय को ध्वस्त करने वाली है. और हमारा जो रास्ता है ऑल भारतीयों का, वास्तव में तो हर मनुष्य का होना चाहिए, लेकिन भारतीय का जरूर होता है मोक्ष प्राप्ति. मोक्ष यानी क्या है? हम कहीं स्वर्ग में नहीं चले जाते. मोक्ष है कामना से मुक्ति.
मुझे आज 108 हनुमान चालीसा करने हैं, वो मेरी कामना है, लेकिन अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो कोई वांदा नहीं, बजरंग बली जैसी आपकी इच्छा। ये मोक्ष की एक स्थिति है और उसको हमें अचीव करना है तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, विचार भी स्वस्थ होने चाहिए और हमारे कर्म भी स्वस्थ होने चाहिए। These are the basic principles of Ayurveda, that is science of life. Life यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ की, जीव मात्र की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई है। कीट पिपीलिका उनकी भी चिकित्सा बताई गई है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ह्यूमन लाइफ की, मनुष्य जीवन की। ड्यूटीज ऑफ ए वैद्य, ये हम भूल जाते हैं क्योंकि पश्चिम में ऐसा बाइफर्केशन किया गया है, तो ऐसा माना जाता है कि वैद्य जो है वो अष्टांग में निपुण होता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शारीरे सुश्रुतो श्रेष्ठ, चरकस्तु चिकित्सिते, कश्यप जो है वो बाल तंत्र है, ऐसी बातें नहीं होती। ये बातें हुई है मतलब कि उस वक्त भी अष्टांग आयुर्वेद के मुताबिक पवन जी आवाज, पारुल जी आपका आवाज कट गया जी। पारुल जी नमस्कार, आपका आवाज, पारुल जी बीच में आपकी आवाज कट गया जी। हाँ जी आ गया अब। वो रेडियोलॉजी जो है उसकी जरूरत हमें इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे पास लक्षण समुच्चय बहुत ही वैज्ञानिक था और वो लक्षण समुच्चय के आधार पर हम लोग बता सकते थे कि इन लक्षण है तो अंदर के इस अवयव में इस तरह की विकृति हुई है। We were able to tell that and I have shown that to my students often. यहाँ पे क्या है, व्याधिस तत्व परिज्ञानम वेदनायाश्च निग्रह एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वम न वैद्यः प्रभुरायुषः। अभी यहाँ पे संस्कृत भाषा का क्या बोलते हैं हम लोग, सुंदर रचना है ये। व्याधिस तत्व परिज्ञानम, व्याधि का पूर्णतः ज्ञान, परिज्ञानम आगे प्रेफिक्स दिया है, यानी समग्र रीत से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वेदनायाश्च निग्रह, जो वेदना है, जो भी वित ज्ञाने धातु, यानी जो दुख का ज्ञान कराने वाली वेदना ज्ञान है, दुख का अनुभव कराने वाला जो ज्ञान है उसका निग्रह होता है, वो तोड़ना है। तद वैद्यस्य वैद्यत्वम, वैद्य वही है जो वेद व्याधि को जानकर उसकी वजह से उत्पन्न हुई वेदना को दूर कर सकता है, वरना वो वैद्य नहीं है। न वैद्य प्रभुरायुषः, यहाँ पे इसका मतलब तो ये होता है कि वैद्य जो है उसकी प्रभुता यानी आयुष को बढ़ा नहीं सकता। लेकिन आचार रसायन प्रकरण में आचार्य बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने आचार रसायन का सेवन किया, नित्य रसायन का सेवन किया तो वो अकाल मृत्यु से मुक्त होता है। तो काल मृत्यु जो है उसमें वैद्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अकाल मृत्यु को वो बिल्कुल दूर कर सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरी जगह बताया गया है कि ये व्याख्या जो है उसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है, दोनों अर्थ हम ले सकते हैं, ये संस्कृत भाषा है। चिकित्सा के प्रकार, रोगमादौ परीक्षेत ततः अंतरम औषधम ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित। रोगमादौ परीक्षेत होता क्या है, रोगी की परीक्षा होती है, पल्स ली जाती है, बीपी लिया जाता है, उनको लक्षण पूछे जाते हैं। लक्षण रोगी को नहीं बताने, रोगी पहले सिर्फ अपनी वेदना बताएगा कि मुझे सर दर्द हो रहा है, वे सर दर्द क्यों हो रहा है वो हमें ही जानना है। तो समग्र रीत्या परितः उसका ज्ञान लेने के लिए उसकी परीक्षा की जाती है, वो अष्टविध वो सब बातें यहाँ हम नहीं करेंगे।
यहाँ हम जो भी बातें कर रहे हैं वो पुष्पधनवा रस का प्रॉपर एप्लीकेशन के बारे में ही बात करेंगे। रोगमादव परीक्षेत, किस वजह से व्याधित हमारे पास आया है, व्हाट इज हिज प्राइमरी कंप्लेन, उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमारे पास लेडीज आती है, बताती मुझे बच्चा चाहिए, बट शी इज वेरी क्लियर शी डजंट वांट अ बेबी, लेकिन फैमिली सोसाइटी इतना फोर्स कर रहा है, हस्बैंड इतना फोर्स कर रहा है, तो हमारे पास आई है लेकिन उसको दवाई नहीं चाहिए, तो उस वक्त हम पुष्पधनवा को वेस्ट नहीं कर सकते। रोगमादौ परीक्षेत ततोनंतरम औषधम, उसके बाद ही औषध के बारे में सोचना चाहिए। ततः कर्म भिषक, पश्चात उसके बाद जो वैद्य है, भिषक, भिषक यानी जो औषध को जानता है, वैद्य का ही पर्याय है वो, उसके बाद ही ज्ञान पूर्वम समाचरित, कर्म अगर कोई करता है तो या नस्य है या कर्णपुरण है या शिरोधारा है या बस्ती है, कुछ भी, तो वो कर्म तब ही वो तय करेगा या उसको करवाएगा जब उसने रोग की बराबर परीक्षा की है। अगर ये नहीं करते हैं तो अपरीक्षित औषध से हानि होती है। कैसी हानि होती है? यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निरशनी यथा तथौषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। ज्ञान पूर्वक औषध का प्रयोग करने से वो अमृत जैसा फल देती है, लेकिन अज्ञानवश बिना जाने पहचाने अगर किसी भी औषध का यानी पिपली का भी सेवन किया या लहसुन का भी सेवन किया तो वो विषवत अपना काम करेगी, या बिना जाने शस्त्र का प्रयोग। हमारे पास इस वक्त मेरा बेटा जो है वो कराटे क्लासेस करवाते हैं, तो उसमें एक बच्चा है वो स्वॉर्ड का वो जानता है, तो हम लोगों ने उसको पूछा कि भाई तू स्वॉर्ड से करता तो है, तलवार चला तो लेता है, लेकिन उसको म्यान में रख के क्यों तलवार चलाता है भाई? तो बोले मैं जितनी बार म्यान से निकालता हूँ मेरे पैर में लगता है, इसलिए मैं म्यान सहित तलवार चलाता हूँ, म्यान सहित तलवार नहीं चलाई जाती है। ऐसी कुछ बात हम लोग पुष्पधनवा के प्रयोग के समय करते होते हैं। यथा अग्नि, अग्नि जो है ऐसा बोला जाता है अग्नि में हाथ नहीं डाले जाते, भाई अग्नि है संभालो। वैसे ही अश्नि जो लाइटनिंग आती है उसको भी अगर हमने बराबर नहीं संभाला तो इट्स गोइंग टू हैव हैजार्डस इफेक्ट। तो वैसे ही अज्ञान से औषध, किसी भी औषध का प्रयोग करने से वो बहुत ही दुष्परिणाम देती है और फिर बदनाम आयुर्वेद होता है। अचिकित्सीय रोगी, ये बात करनी बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर हम रोगी को बराबर पहचान कर उनकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो वो निश्चय ही हमें अपयश दिलाएगा और आयुर्वेद की बदनामी होगी। देखिए साहब, आचार्य ने बिल्कुल बताया है कि यादृच्छिको मुमुक्षुश्च विहीनः करणैश्च यः वैरी च वैद्यद्विद्वेषी श्रद्धाहीनः सशंकितः। 99% तो पेशेंट निकल ही जाएंगे। विषजम अनियम्यश्च न उपक्रम्यो विषक विदा एतान उपाचरन वैद्यो बहुन दोषान अवाप्नुयात्। लेकिन अगर प्रमादवश या लोभवश या अज्ञानवश इनकी अगर सेवा करी तो वैद्य को बहुत बड़ी दिक्कतें होगी। आप मानेंगे नहीं साहब, हमारे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थी, तो उसमें तो हम किसी को ना नहीं बोल सकते, सबको हमें ट्रीटमेंट देनी होती थी। तो अभी ये जो आचार्य का उपदेश है उसकी तो अवमानना ही होगी, तो क्या करें? तो दवाई देते थे हम लोग और हम देखते थे कि नेक्स्ट टाइम जब वो पेशेंट आएगी तो वही बताएगी कि ना आपको कुछ आता ही नहीं, आप कैसी दवाई देते हैं, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। कहाँ से मिलेगा? आपको उस औषध पे तो श्रद्धा ही नहीं है। और डिटेल में आप पूछेंगे आपने दवाई बराबर ली क्या? अरे कहाँ, ये रही पुड़िया, और पुड़िया आपकी पर्स में है तो आपको कहाँ से रिजल्ट देगी? सशंक श्रद्धाहीनः। ऐसे जो है रोगी
उनका औषध देने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात आचार्य ने बहुत बढ़िया बताई है, चिकित्सित शरीरम यो न निष्क्रिणाति दुर्मति स यत् करोति सुकृतम तत्सर्वम विषगश्नुते। मैंने देखा है कि बहुत महंगी महंगी गाड़ी से उतरकर हमारी अखंडानंद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मुफ्त में दवाई लेने के लिए लोग आते थे, और वो बेचारे भिखारी लोग कुछ भी, अगर आप बोलो कि भाई फलग्रुत हम सरकार नहीं देती है तो आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये जो दवाइयां हैं वो तो यहाँ से हम देंगे, तो बोलेंगे नहीं हमारे पास फलग्रुत के लिए पैसे नहीं है। भाई तेरा पेट्रोल का बिल फलग्रुत से तो ज्यादा है, तो वो नहीं देंगे। तो उनके लिए बताया गया है। प्राइवेट प्रैक्टिस में तो ये हर रोज की माथा पचीशी है, नहीं देते हैं पैसे, बोलेंगे ज्यादा पैसे ले रहे हैं आप, कम करिए, बार्गेनिंग करते जैसे सब्जी लेने निकले हैं। तो वैद्य को वहां पे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आचार्य ने अभय दे रखा है, वो जो कोई भी पुण्य कमाएगा वो सब वैद्य को ही मिलेगा। चिकित्सा रोगी किसकी चिकित्सा बिल्कुल करनी चाहिए। वो पेशेंट गरीब है इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन। स्मृति निर्देशकारित्वम अभिहृत्य मथापि च ज्ञापकत्वं च रोगाणाम आतुरस्य गुणाः मताः। जो व्याधित अपनी पीड़ा का यथार्थ यानी कि फ्रॉम शुरुआत से वो अपना आज दिन तक का पूरा वृत्तांत दे सकता है, उसकी इस वक्त क्या परिस्थिति है वो भी बता सकता है, वो भय रहित है, आपके पास मदद के लिए आया है और कुछ उसको नहीं चाहिए, वैसे पेशेंट को बिल्कुल चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल यश दिलवाएगा। चिकित्सा कब तक करनी चाहिए? यावत कंठगता प्राणा। अभी पुष्पधन्वा रस में कहां से यावत कंठगता प्राणा आया? यावन नास्ति निरेंद्रिय, जब तक उनकी इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, वो पॉइंट हमारे काम का है। तावत चिकित्सा कर्तव्या कालस्य कुटिला गति। पता नहीं कब हमें रिजल्ट मिल जाएगा। वो मेरा एक पेशेंट था, वो एजोस्पर्मिया का पेशेंट था, तो उसको हम लोगों ने जांच करवाई, सभी जांच करवाई, लास्ट में जाके पता चला कि वास जो है उसमें गठन हो गई है, तो वो खुलवाने के लिए पेशेंट बहुत डरा हुआ था। नहीं नहीं मैडम मुझे वास तो नहीं खुलवानी, पता नहीं सर्जरी से कितना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 10% रिजल्ट ही मिलता है, फिर अगर नहीं मिला तो रिजल्ट। बोले कोई वादा नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रख के आप जाओ और करवा लो। फिर वे लोग गए, वास एक साइड की खुलवाई, दूसरे साइड की नहीं खुलवाई, लेकिन स्पर्म में कोई फर्क नहीं आया, दवाई तो वे बराबर लेते थे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वे लोग बहुत ही श्रद्धालु थे। मैंने बताया कि किस तरह के व्याधित की बिल्कुल चिकित्सा करनी चाहिए, वैसे व्याधित ये कपल थे। वाइफ वॉज वेरी 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 कोऑपरेटिव, और हस्बैंड जो था वो बराबर समझ के कोऑपरेट कर रहा था। हस्बैंड टीचर था, वाइफ हाउसवाइफ थी, तो बहुत समझ के वे लोग हम कोऑपरेट कर रहे थे। तो उसका स्पर्म काउंट किसी भी हाल में बढ़ नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने उनको टेक्निकली सब समझाया, और वो जो लड़की है वो कंसीव हो गई, उसको बेटा भी हुआ, बेटा अच्छी तरह बड़ा भी हो रहा है। दूसरा एक केस मेरा कोलवड़ा में था, उसमें दोनों कपल जो थे वो दोनों टीचर थे और दोनों की अलग अलग जगह पे पोस्टिंग थी। तो हस्बैंड काफी स्ट्रेस रहता था, क्योंकि वाइफ जिस गांव में थी उस गांव को कुछ अनिष्टकारी तत्व ज्यादा रहते थे। तो मैंने हस्बैंड को समझाया कि भैया वो वहां रह रही है, लेकिन कि आज कल करके 3 साल लग गए, 3 साल में किसी ने आपकी वाइफ को छेड़ा या परेशान किया? बोले नहीं। तो सभी मास्तरनी को अच्छा मान दे रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, देन व्हाई आर यू टेकिंग दिस टेंशन? तो बोले हाँ सही है। तो उसके बाद उसका वाइफ ने बोला कि परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ा, और हमारी औषध भी जो है वो काम कर पाई, और वो वे लोग भी कंसीव हुए। और कंसीव होने के उपरांत जो है वो पता चला कि जब उसका बच्चे का जन्म हुआ तब तक तो मैं रिटायर हो चुकी थी। तो उन लोगों ने मुझे मैसेज करके बच्चे का फोटो भी भेजा। लड़की थी लेकिन शी वॉज वेरी हेल्दी,
वो बिल्कुल 3 किलो से ज्यादा थी। यानी रिजल्ट मिलता है, लेकिन हमें टेक्निकली समझना पड़ता है किस वजह से ये लोग इनफर्टिलिटी में गए हैं। दूसरा पॉइंट जो आचार्य ने बताया है, जात मात्र चिकित्सस्तु नोपक्षो, डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, इतना बता देती हूँ कि जैसे ही व्याधि उत्पन्न होता है तुरंत ही अगर उसकी चिकित्सा हम शुरू कर देते हैं तो व्याधि बल जो है वो कम रहने की वजह से उसके अग्नि में हमें जो है वो ज्यादा विकृति नहीं मिलेगी और हम जो है जल्दी रिजल्ट ले पाएंगे, यानी कम टाइम में हम रिजल्ट ले पाएंगे। ग्रह शांति पूर्वक चिकित्सा की शुरुआत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब हम जब पुष्पधनवा जी सर। पर फोकस करें ना। हाँ सर, ये सब पुष्पधनवा रस का ही बात चल रहा है। पुष्पधनवा, मैं उसके साथ क्लिनिकल भी आपका एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लिनिकली हम मुझे जो केसेस में जो रिजल्ट मिला वो बात भी साथ में कर रही हूँ। ये पॉइंट्स जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। पेशेंट आया, तुरंत ही उसको आपने दवाई शुरू कर दी तो तुरंत रिजल्ट यथेच्छयावाद रहेगा, मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा। तो नहीं का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, उसके लिए मैं इनके ऊपर ज्यादा जोर दे रही हूँ। इनके ऊपर जोर देंगे तो हमें ज्यादा जल्दी और जितना चाहिए उतना रिजल्ट मिल पाएगा। ये ग्रह शांति पूर्वक जो चिकित्सा करनी है, इसके बारे में आज की जो जनरेशन है फिजिशियंस की, वे लोग भी बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ग्रह शांति पूर्वक या प्रार्थना करके, जैसे कि सुश्रुत ने बताया है कि आतुर रक्षा स्तोत्र, उसका पठन करके उसके बाद हम अगर दवाई देते हैं तो वही औषध हमें ज्यादा पोटेंटली रिजल्ट देती है। ये आतुर रक्षा स्तोत्र है सर। चिकित्सा प्रकार जो है उसमें आसुरी, मानुषी, दैवी। तो दैवी चिकित्सा में हमारा पुष्पधनवा रस आता है। रस औषध जो है उनको हम दैवी चिकित्सा में समाविष्ट कर सकते हैं और ये चिकित्सा जो है वो धातु को सम भी करती है और विकारों का प्रशमन भी करती है। लेकिन उसमें ये बात मैंडेटरी है कि जहाँ पे जो दवाई चाहिए वही हमें देनी चाहिए। जैसे कि गंधक और पारद की कज्जली करी, और वो कज्जली जो है सभी रोगों को दूर करने वाली है, लेकिन जिस तरह हम अकेला स्टेरॉइड नहीं दे सकते, उसके साथ हमें एंटीबायोटिक एज ए कवर देना पड़ता है, विटामिन भी कवर के रूप में देने पड़ते हैं। वैसे ही आयुर्वेद में जब हम कज्जली का प्रयोग करते हैं तो हमें उसके साथ कुछ काष्ठ औषध मिलाने जरूरी होते हैं। औषध गुण, औषध के गुण जो है उसको बिना जाने, अब कैसे जाने, तो अन्य जाति कृतः पाको, जो चर्चा हो रही थी उसका ये श्लोक है। अन्य जाति कृतः पाको यस्पृश्यः सर्व जातिभिः इति विज्ञाय मतिमान वैद्यम पाके नियोजयेत्। वैद्य अगर कोई औषध बनाता है तो समझ कर ही बनाएगा और उसके बनाए हुए औषध का ग्रहण निर्भयता से हम कर सकते हैं। अन्य यानी वैद्येतर जाति के जो मनुष्य है वे उन औषधों के गुणों से अनभिज्ञ होने की वजह से उनकी बनाई हुई औषध में, जैसे बताया कि प्रतिनिधि औषध या फिर औषधि न डाले, ये सब बातें हो सकती है। इसलिए वे औषध जो है उतना कार्यकार नहीं दिखाती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि औषध निर्माण अच्छे वैद्य की सहायता से करवाए। क्यों? जो वैद्य है उसने विद्या प्राप्ति के लिए कठिन श्रम किया है, यज्ञ किया है, और उसकी वजह से वैद्य को हम लोग द्विज भी कहते हैं। यानी कि जब वो आयुर्वेद पढ़ने के लिए आते हैं तो वो एक बार तो उसका जन्म हो गया, लेकिन आयुर्वेद पढ़ने के उपरांत जो मनुष्य समाज में वापस आते हैं वे काफी बदल चुके होते हैं। इसलिए वैद्य जो है उसको द्विज कहा जाता है। रोग शांति के साधन में तो ये चार सब जानते हैं, लेकिन वैद्य के जो गुण होने चाहिए उसमें हम जरा कम जोर देने लगे हैं। इसलिए हमें काफी कुछ दिक्कतें मिल रही हैं। श्रुते है पर्यदात तत्व
बहुशो दृष्ट कर्मता। अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो कर्म तो होते ही नहीं है, तो देखेंगे कौन से? पेशेंट भी नहीं है, कहाँ से आएंगे? शौच क्या है उनको पता नहीं, शौच से या ये नंबर 1 नंबर 2 समझेंगे या फिर क्लीनलीनेस समझेंगे, स्वच्छता समझेंगे। शौच के अलग प्रकार है, आयुर्वेदक तो शौच अलग है। वैद्य गुण चतुष्टयम, अभी 3 गुण तो पता ही नहीं है, तो चौथे गुण को क्या करेंगे? ये बातें जो है उनको समझने के बाद अगर वैद्य अगर कुछ कर्म करते हैं तो वे कर्म गुणकारी होते हैं और समाज को भी उससे कुछ न कुछ लाभ मिलता है, जरूर मिलता है। वैद्य के भेद बताए हैं, लेकिन मैं इसमें डिटेल में नहीं जाते हुए इतना ही बताती हूँ। परीक्षाम यो न जानाति स वैद्यो यम एव ही। जो वैद्य न औषध की परीक्षा जानता है, न व्याधि की परीक्षा जानता है, न व्याधित की परीक्षा जानता है, न समय का उसको पता है, वैसे वैद्य के द्वारा दिया गया औषध या किया गया शस्त्र या किया गया कोई भी कर्म, वो व्यक्ति व्याधित जो है उसका विनाश करने के लिए ही है। यदृच्छया रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट नहीं कहा जाता। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में बात कर रही हूँ सब। प्रशस्त औषध कैसा है? तो प्रशस्त देश संभूतम प्रशस्ते हनि चोद्रुतम, सम्यक काल में उसको लिया गया है। आजकल क्या हो रहा है, कभी भी ले लेते हैं। बारिश में पूरी पूरी औषध नहीं निकाली जाती, क्योंकि बारिश के बाद उनको फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, उसके बाद अगर फल लिया जाए तो ठीक है। ये तो 12 महीना कभी भी फल आ जाए और उसका हम ग्रहण कर ले, इसके वजह से जो हमें वीर्य गंध रस गुण मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसकी वजह से उसका कार्मुकता जो है औषध की, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट हर्ब्स, वो कार्मुकता नहीं मिलती। और कोई भी रस औषधि ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ रस औषध है और उसमें हर्ब्स नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। व्हाट इज पुष्पधनवा रस? जैसा साहब ने बता ही दिया है कि पुष्पधनवा जिसके हाथ में पुष्प का धनुष्य है, यानी कामदेव, वो कामदेव की आराधना करने में जो कोई भी अवरोधक बल है उसको दूर करने वाला ये रस है। यानी वो है तो रस औषधि, लेकिन उसको हर्बो मिनरल बोले या मिनरल फॉर्मुलेशंस बोले, बट दे आर ऑल फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस and they are supposed to have heavy metals like mercury, lead, arsenic, etc. यहाँ पे एक बात मैं साहब आपको बताऊंगी कि कोई भी भस्म है उसमें इसेंशियल क्वालिटी है निश्चंद्रत्व, रेखा पुरत्व। अभी सुवर्ण भस्म जो है उसमें निश्चंद्रत्व होना जरूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत सीनियर, यानी मैं उनके पास यूजी पीजी दोनों पढ़ी हूँ, वो मैडम जी बता रहे थे कि सुवर्ण भस्म देखो, इसमें कहीं पे भी सुवर्ण के अंश मिल रहे नहीं, मैं इसको कैंसल कर लेती हूँ। आई एम नॉट अलाउिंग यू टू यूज दिस सुवर्ण भस्म। अभी निश्चंद्रत्व जिस भस्म का गुण है, यानी कि ये जो है जाम्बली वर्ण की जो बनी है वो बराबर बनी है, लेकिन मैडम उसको रिजेक्ट ही करती थी। जब तक मैडम कुर्सी पे बैठी थी सुवर्ण भस्म को रिजेक्ट ही करती थी। अभी ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट मिलेंगे तो क्या करेंगे हम? उसको निश्चंद्रत्व उसका मैंडेटरी ये है, क्वालिटी है, और वो तो थी से उसमें भस्म बिल्कुल बराबर बनी थी। ये प्रॉब्लम है। सो इन रस मर्क्यूरी इज मैंडेटरी, मर्क्यूरी में भी इन एनी फॉर्म। हमारे यहाँ पे जो है उसमें पहले कंटेंट मर्क्यूरी वाला ही है, और इसमें स्मॉल डोज देना होता है। ज्यादा जैसे हर्ब्स में हम लोग देते हैं वैसा रस औषध में नहीं देते हैं। आराम से दर्दी ले सकता है, और सबसे बढ़िया बात जो है लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। वैसे ये लोग बोल रहे हैं कि इसके एक्सपायरी डेट डालो, लेकिन रस औषधि में एक्सपायरी डेट की वैसे जरूर होती नहीं है। द होल स्लाइड हैज बीन मेड फ्रॉम इंटरनेट, इट इज नॉट फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक। आप देखिए कि इसके अंदर कितना गड़बड़ सब लिखा हुआ है। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द टेक्स्ट। पुष्पधनवा इज नॉट फॉर ओनली
impotency, or it's not only a rejuvenator, it is many more things. PCOS जो है वो उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए, वही ध्यान हमें रखना है। लेकिन PCOS में पुष्पधनवा रस देते हैं तो फिर रजा प्रवृत्ति क्या करेगी? इसमें देखिए सब आयुर्वेदोक्त क्या दिया गया है और नेट पे क्या है। रस सिंदूर इज द मेन ड्रग और दिया गया है शुद्ध पारद। अभी बंदा तो शुद्ध पारद डाल के ही उसको यूज करेगा, पारद का शोधन करके हम सीधा उसको कैसे यूज करेंगे? लेकिन लिखा है नेट पे, और अगर बंदा ने ये देख लिया और उसके मुताबिक चला तो फिर तो गड़बड़ होनी ही है, फिर तो टॉक्सिसिटी मिल भी सकती है, ना भी मिले तो बेहतर है। जैसे ही अपने पीयूष जी ने बताया ये सभी औषधों के गुण मुझे थोड़े ऐड करने हैं। पुष्पधनवा रस जो है उसमें रस सिंधुर ऋषि योगवाही तो है, वातग्न है, नाड़ी बल्य है, गर्भाशय व्याधि हर है। और रस सिंदूर का प्रयोग जो स्त्री रोग की जो औषधियां है उसमें काफी देखा गया है। नाग भस्म, बंग भस्म दोनों का उपयोग जो है हम लोग जो एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, ये जितने भी योग है उसमें ये ड्रग्स हमें बिल्कुल मिलती है। अब ये देखिए नाग भस्म जो है वो काम बलप्रद है और बंग भस्म जो है वो गर्भच्युतिहर है। अभी गर्भच्युतिहर ये बहुत बड़ी बात आचार्य ने बता दी। बंग भस्म जो है वो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पे काम करता है, यानी यूरिनरी सिस्टम के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम है तो बंग भस्म उसको बिल्कुल दूर करेगी। तो वो दूर होगी तो गर्भाशय का भी अपना टोन अच्छा होगा और वो यूट्राइन टोन और जितना भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, बंग की वजह से न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन की वजह से गर्भ का स्रावपात नहीं होगा। आ चतुर्था ततो मासात प्रस्रवित गर्भ विच्युति ततः स्थिर शरीरस्य पात पंचम षष्ठयो। यानी कि जो हम लोग टॉर्च ग्रुप ऑफ डिजीजेस है उसकी वजह से जो एबॉर्शन होते हैं, रिकरेंट एबॉर्शन होते हैं, उनमें हम अगर बंग भस्म का प्रयोग करें तो हम उसे रोक सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने तो सिर्फ हर्ब से रिजल्ट लिया है। हर्ब्स बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, लेकिन टीएनसी ये है कि वो कहाँ काम करेगी, कौन से स्रोतस पे काम करेगी, किस मात्रा में काम करेगी और किस काल में काम करेगी, ये अगर हम जान ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लोह भस्म जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रस तरंगिणी पढ़े या कोई भी रसशास्त्रीय ग्रंथ पढ़े तो लोह भस्म में कोई व्याधि पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिसमें लोह भस्म काम न करे। लेकिन अगर भस्म ढंग से न बनी हो तो रस तरंगिणीकार बताते हैं कि वो वही रोग करेगी जिसका वो शमन करनी चाहिए। अपरक भस्म जो है वो ज्यादा करके हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं। क्षय राजयक्ष्मा में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। अपरक भस्म से हम राजयक्ष्मा तक यानी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में रिजल्ट ले सकते हैं। नहीं, मैं हाइपरबोले नहीं कर रही हूँ, मैंने रिजल्ट लिए हैं। अभी इसमें आचार्य ने बताया है अपरक भस्म संतान कारक है, शुक्र वृद्धि कर है, शीत वीर्य है। लेकिन एक बात जो पांचों में मिल रही है, पांचों जो रस औषध है उनमें मिल रही है, वे है दीपन, वातहर, लघु है और जो है वो तिक्त रस भी है और लेखन भी है। ये जो औषधों के अपने गुण है उसमें उन्होंने भावना द्रव्य दिए, वो धतुर पत्र और बंगा बीज है। दोनों को हम लोग, क्योंकि वे विष से विष है तो आशुकारिता उनमें है, तीक्ष्ण गुण तो बिल्कुल रहेगा। मुलेठी जो है वो श्रमहर भी है, वृक्ष भी है। सेमल मुसली वृक्ष है। नागरवेल के पत्ते जो है वो आशुकारी है और वे स्वाद भी देते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रख के बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आचार्य ने बनाया और ये सब की सम्मिलित असर से पीयूष जी ने बताया। उसके उपरांत मुझे बताना है कि 125 मिलीग्राम वटी जो है उसको हम लोग पीस ले, उसके अंदर शहद मिला के उसको चाट के ऊपर हल्दी वाला दूध पी ले तो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब अगर आपको
जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसमें रिजल्ट लेना है या फिर पीसीओडी में आपको रिजल्ट लेना है तो गोघृत की बजाय हम लोग फलघृत का यूज करें तो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ये कामोत्तेजक भी है लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर बल, वीर्य और शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अभी कोई भी औषध जो है वो या रसायन है या वाजीकर है। कोई भी औषध शरीर में जाके अग्निमांद्य दूर करेगा और अग्निमांद्य दूर करेगा तो उससे जठर अग्नि और धातु अग्नि दोनों पे उसकी असर होगी। आम दूर होगा तो रस धातु अग्नि मांद्य दूर होगा और उससे बनने वाले जो उत्तर धातु है, जो मल है और जो उपधातु है, वो तीनों का सम्यक जितनी क्वांटिटी में जिस क्वालिटी में बनना चाहिए वो बनेगा और उस वजह से हमें उत्तरोत्तर धातु होते होते हम शुक्र दुष्टि और शुक्र श्रुति, शुक्र से यहाँ पे स्त्री में आएगा ओवम, पुरुष में आएगा स्पर्मेटोजोअन। तो ये जो है वो ठीक से हो पाएगी, उसकी दुष्टि उसकी विकृति दोनों दूर होगी। शुक्र की यानी कि सीमेन की विकृति के बारे में बात होती है कि उसका हेड नहीं है, टेल नहीं है, 2 टेल है, 2 हेड है, उसका बॉडी नहीं है, ये सब बातें बहुत मॉर्फोलॉजिकल चर्चा होती है लेकिन ओवम के बारे में ऐसी चर्चा नहीं होती है। पीसीओडी को बिल्कुल समझना जरूरी है। वो तभी ही होती है जब ओवम का मैच्योरेशन और टाइम पे नहीं हो रहा है। दोनों बातें होनी बहुत जरूरी है। वो अगर ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, इनफ जितना पोटेंट ओवम आना चाहिए उतना पोटेंट ओवम नहीं आएगा तो स्पर्म कितना भी प्रशस्त होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और अगर होगा तो वो गर्भस्राव पात या विप्रसव में चला जाएगा। बच्चा जो है जितना पोटेंट होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो ये जो रस औषधि है अपनी पुष्पधन्वा रस, ये प्रॉब्लम दूर करती है। इसलिए अगर हम बोले कि इनफर्टिलिटी दूर करती है या फिर वो जो पोटेंसी है वो बढ़ाती है, जनरल डेबिलिटी दूर करती है, विगर और स्ट्रेंथ बढ़ाती है, लेकिन उसके मूल में ये अपना प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल के ऊपर हम चले तो हमें रिजल्ट मिलेगा। इंद्रिय शैथिल्य प्रमेय यानी जो लाला में के बारे में आपने बताया पीयूष जी ने, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। इस वक्त वो 3-4 पॉइंट से उसको नहीं छू रही हूं मैं। पुष्पधन्वा रस के जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें बैलेंस वात और पित्त के ऊपर कर रहे हैं ऐसा नेट बता रहा है, लेकिन वास्तव में त्रिदोष के ऊपर काम करने वाले हैं। ये जो आप देखे बॉक्स के अंदर मैंने ज्यादा करके हर्बल्स पर बात की है। एक सिवा के कस्तूरी के, कस्तूरी, सुवर्ण, रजत, बंग, लोह, शिलाजतु, ये जो है वो रसशास्त्रीय है। बाकी अश्वगंधा, गोक्षुर, विदारी कंद, वाराही कंद, गोरखमंडी, शतावरी, जाति फल, मुस्ली, केसर, त्रिफला, त्रिफला भी रसायन है। इन सब ड्रग्स से, हर्बल ड्रग्स से हमें इतना ही रिजल्ट मिलता है जो लेफ्ट साइड में ड्रग्स बताए गए हैं। तो अकेले पुष्पधन्वा से रिजल्ट मिलता है ऐसा नहीं है। ये सब ड्रग्स भी इतना ही रिजल्ट दे सकते हैं प्रोवाइडेड हम उनको जांच करके ही उनका इस्तेमाल करें। पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, मेरे पास आया था, करीब 32 इयर्स का था, बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ रहा था। तो उसने अपना पूरा ये आत्मविश्वास खो दिया था। मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो मैं क्या करूं? आप मानेंगे नहीं साहब, मैंने उसको चंद्रप्रभा वटी दी, उसका यूरिन फ्रीक्वेंसी कम हो गया, उसका सब यूरिन के रिपोर्ट्स, ब्लड के रिपोर्ट्स, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ही वाज वेरी स्ट्रेस्ड। नई नई जॉब लगी थी, घर से दूर था, सुबह जाना शाम को आना, टाइम पे पहुंचना, प्राइवेट जॉब थी, तो वो स्ट्रेस था। चंद्रप्रभावती ने वो स्ट्रेस दूर कर दिया। और हमारे सरकार में तो चंद्रप्रभावती नंबर 3 ही मिलती है, नंबर 1-2 भी नहीं मिल रही। 1-2 मिले तो भी हमें रिजल्ट मिले। नंबर 3 चंद्रप्रभावती, जिसमें कोई भी रसशास्त्रीय औषध नहीं होती है, उससे हमें रिजल्ट मिला क्योंकि उसका स्ट्रेस जो था वो कम हो गया। इसकी वजह से जो शोथ था वो दूर हो गया, तो स्पर्म जो है वो बराबर आने लगे, तो लेडी कंसीव्ड। ये मेरा चाहिता है फलग्रुत, और ये फोटो बराबर नहीं आया,
क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट थी, हम लोगों ने वहां डिस्प्ले में रखा है फलग्रुत, और आप मानेंगे नहीं, गांव की प्रजा इसको पढ़ के समझने की कोशिश करती है और फलग्रुत के बारे में बातें करने लगे हैं। माय फेवरेट ड्रग इज फलग्रुत। अभी ये अष्टांग संग्रह में पुंसवन, सॉरी मेरे से भूल हो गई, पुंसवन योग है। क्षीरिणी च स्वदंष्ट्रा च फाणितम शर्करा मधु घृष्टि क्षीरम नवम सर्पी एतत् पुंसवनम परम। अष्टांग संग्रह ने कहीं पे भी रसौषध के बारे में इतनी बातें नहीं की जितनी उन्होंने हर्ब्स के बारे में बात की। और आप सब जानते हैं कि अष्टांग हृदय से ज्यादा अगर अष्टांग संग्रह का कोई योग मिलता है तो तुरंत हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो जो है वो उसमें कुछ गड़बड़ कम हुई है, अष्टांग हृदय से उसमें गड़बड़ कम हुई है। तो अष्टांग संग्रह अध्याय 50 का ये श्लोक है सब। व्हाट इज वाजीकरण? अभी ये जो हम बोलते हैं कि पुष्पधनवा रस है वो वाजीकरण करता है, लेकिन हमें पता भी है वाजीकरण क्या है और वाजीकरण सभी में करना जरूरी है क्या? तो आचार्य बताते चरक चिकित्सा स्थान 2 में कि स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु, हर जो औषध है जो हम दे रहे हैं उसमें से या तो स्वस्थ का ऊर्ज बढ़ाता है, और उसमें 2 प्रकार है, वृष्य है या रसायन है। लेकिन जो व्याधित है उसमें हम औषध दे रहे हैं तब वो औषध भी रसायन कर्म ही करेगी, प्रोवाइडेड पहले वो अग्निमंद्य दूर हो। इसलिए जब भी हम औषध योग बनाते हैं तो पहले हम दीपन पाचन देते हैं, उसके बाद औषध देते हैं और फिर शोधन भी साथ में करते हैं, या फिर उसको दीपन पाचन के बाद शोधन देते हैं और फिर उसको रसायन थेरेपी देते हैं। यानी अगर हार्ट प्रॉब्लम है और हम अर्जुन दे रहे हैं, सीधा अर्जुन दिया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन दीपन पाचन के साथ हम लोगों ने अर्जुन दिया तो वो अर्जुन जो है हृदयाणाम श्रेष्ठ रिजल्ट देता है। यह भी पुष्ट यहाँ पे जो वाजीकरण है उसमें विषयी पुमान के अंदर वाजीकरण करना जरूरी है, क्योंकि उसको प्रतिलोम क्षय होगा और तकलीफें बढ़ेगी। अपत्यम च गुणवत, जो विषयी पुरुष है उसको काम वासना ज्यादा है तो उसकी अपत्य जो है, संतान जो है वो उतने पोटेंट नहीं आएंगे, क्योंकि उसका अपना वीर्य जो है वो इतना पोटेंट नहीं है। अब खुद पोटेंसी नहीं रखते हैं तो बच्चे को कैसे देंगे? इसलिए मैं तो हर बार जो संतानेच्छुक युगल है उसको बताती हूँ कि ब्रह्मचर्य जो है ऋतुकाल अभिगमनम ब्रह्मचर्यम, ऋतुकाल में क्योंकि अपत्य चाहिए आपको तो ऋतुकाल में गमन करे, बाकी टाइम में जो है वो अपने आप को संभाले। और जो पेशेंट वाकई में संतान चाहता है वो ये बिल्कुल फॉलो करता है। इसलिए अपत्य संतान कर्म यत, जब आपको कोई औषध देना है तो ब्रह्मचर्य पालन करवाना भी उसको सिखाए। नारी की महिमा, आजकल तो नारी जो है उसको एक ही पॉइंट देखा जाता है, शी इज ए सेक्स टॉय, यूज हर एंड थ्रो हर। ये नहीं है, प्रहर्षिणी है, कबूल, सुरूपा यौवनस्था आप लाते हैं, बहुत अच्छा, वश्य तो होनी ही चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं सोचता, आचार्य ने बताया है चरक ने, लक्षण ही या विभूषिता, स्त्री लक्षणों से वो विभूषित होनी चाहिए। अभी स्त्री लक्षण क्या है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आप देखते ही नहीं है, फिर बोलते उसको पीसीओडी है, उसका इन्फेंटाइल यूट्रस है, तो वो तो गलत है ना। पहले ही देख के लेनी चाहिए ना लड़की को। अब बोलो छूटा छेड़ा हो गया, डाइवोर्स ले लो, फिर दूसरी लाओ, उसमें भी माँ बाप का पैसा देखो, सेक्स करो, तीसरी लाओ, ये क्या हुआ? दिस इज नॉट सोशल बिहेवियर, इट्स एंटी सोशल बिहेवियर। जो भी लाए आप, लग्न संस्था का मान मर्यादा रखनी चाहिए, और वही स्त्री लाओ, वो शायद कम पड़ी है लेकिन संस्कार है, गुणवान है, वो समझती है अपने पति को, अपना धर्म, स्त्री धर्म समझती है और घर का रख रखाव करती है, वो गृहिणी है। वैसी स्त्री जो है वो स्त्री गुण समन्विता है। और वही स्त्री जो है साधु प्रसवते नरान गुणाम या निह, उस तरह के संतान जो आएंगे वो गुणवान आएंगे। गोत्र वृद्धि तो वैसे भी होगी, कुत्ते बिल्लियां भी गोत्र वृद्धि करते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता।
मनुष्य का गोत्र नाम दिया जाता है, ये मेरा वशिष्ठ गोत्र है, ये मेरा गौतम गोत्र है करके हम प्राइड लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि वशिष्ठ गोत्र में जन्म लिया है तो वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे, तो गोत्र गुरु थे, तो उसके हम वंशज है, तो हम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। वो नारी महत्ता और नारी की प्रशंसा के लिए आज के समय में ये थॉट बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो, लेकिन ये न होने की वजह से काफी कुछ गड़बड़े आ रही है। इफ वी वांट द नेक्स्ट जनरेशन टू बी हेल्दी एंड पोटेंट, ये बातें आज की जनरेशन जिसको अभी बच्चा लाना है उसको ये सीखना पड़ेगा। गृह देवता यानी वो स्त्री जो स्त्री गुण समन्विता है, वो गृह देवता का भी मान रखेगी। उसके गृह में श्री माँ लक्ष्मी भी श्री है, माँ सरस्वती भी श्री है, माँ काली भी श्री है। श्री से हम लोग ये प्रोमिसरी नोट्स को अपना श्री समझने लगे हैं, तब से सब गड़बड़ होने लगी है। कोई कला नहीं आती है, कोई हुनर नहीं आता है, तो आपके पास प्रोमिसरी नोट कितनी भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जिस तरह मनुष्य को जीना चाहिए वो नहीं आएगा। यहाँ एक बात आचार्य ने बताई है, योगेन विना श्रेणम नहीं संवननम परम, यानी स्त्री पुरुष दोनों मिलकर ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं, और वाजीकरण का नित्य सेवन करने की वजह से वो जो रतिक्षय उत्पन्न होता है वो नहीं होगा, और उसके यहाँ पर उत्पन्न होने वाली प्रजा जो है वो गुणवान पोटेंसी युक्त होगी। अष्टांग संग्रह 50 एक बार सभी को पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया है। सहवास के योग्य व्यक्ति कैसी है, मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है, तीसरा पार्टनर बीच में लाना नहीं है। मेल हैज टू बी ए पार्टनर ऑफ द फीमेल एंड द फीमेल हैज टू बी पार्टनर ऑफ द मेल। उसके अलावा सहवास वर्ज्य है, क्योंकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो बाद की बात है, उसके पहले बहुत ज्यादा बीमारियां लाता है। तो द कपल शुड बी हेल्दी, शुड बी यंग एंड शुड बी नित्यवाजीकरण सेवी। मैंने यहाँ पे 3 कपल्स रखे हैं, तीनों में से कोई भी आयुर्वेद के लिए ठीक नहीं है। एक में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक बेवफा है, तीसरा जो है वो बहुत नादान है, तो इनके यहाँ प्रजा बिल्कुल उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कॉजेज ऑफ रति शक्ति नाश, तो मेंटल कॉजेज जो है वो बहुत ज्यादा है। चिंता, भय, शोक, अति हर्ष, अति श्वास, अति स्थूल, व्याधि पीड़ित, मालिनांग। बताया गया है कि मैथुन के पूर्व दोनों को स्नान करना चाहिए और मैथुन के बाद भी स्नान करना चाहिए। मैथुन असेवन करने की वजह से भी रति शक्ति नाश होता है। अभी जो लोग दूर दूर सर्विस कर रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, एज एंड व्हेन इच्छा हुई नहीं मिलेगा, जरा से भी रति शक्ति नाश होता है, और उसमें बिना वाजीकर औषध लिए ब्रह्मचर्य की ओर निकल जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास 4 आश्रम की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर आता है गृहस्थ आश्रम, फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के अंदर संन्यास का 50% आ जाता है, जैसे ऋतु संधि में हम लोग शिफ्ट करते हैं, वैसे गृहस्थ से संन्यास में जाने के लिए बीच में वानप्रस्थ आश्रम आचार्य ने रखा है। और वानप्रस्थी अगर संन्यास की दिशा में आगे अपने आप को ले जाए तो उसका बाकी का जो जीवन है बहुत बढ़िया बनता है। कर्षण कर्म, ये मैं देखती हूँ अब मेरे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें ये मैं देखती हूँ गलतियां करते हैं। कर्षण कर्म में पंचकर्म जो है वो कर्षण कर्म है, इसमें से कोई भी कर्म आपने किया तो शरीर की धातुएं जो है वो ईशत या ज्यादा मात्रा में कर्षित होती है, और फिर आप बोलो कि स्पर्म काउंट कम हो गया या फिर उसको मेंस्ट्रुएशन जो है वो थोड़ा लेट आया, तो वो तो नॉर्मल है, इसमें कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। दूसरा कर्षण कर्म जो है वो श्रम है, कोई व्यक्ति है उसको ज्यादा श्रम रहता है
श्रम रहना यानी ज्यादा बोलना भी श्रम है, ज्यादा सुनना भी श्रम है, ये हम भूल गए हैं। किसी भी इंद्रिय का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो ज्ञानेंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, उसका ज्यादा का हम लोग उपयोग करते हैं तो बॉडी की उस इंद्रिय से संबंधित पंच भौतिक क्षय होगा ही। अनशन, अभी उपवास रखे हैं, उसने चतुर्मास रखा है, तो चतुर्मास में इसीलिए बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि वैसे भी धातु क्षीण है और आप अभी मैथुन कर रहे हैं तो ज्यादा कर्षण होगा और प्रतिलोम क्षय बिल्कुल होगा। आई थिंक इट्स क्लियर, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। हाँ, ये एक बात है, मर्म कर्तना, यहाँ पे ये अष्टांग संग्रह से लिया है मैंने पॉइंट, मर्म कर्तना। ये मेरे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि जब हम एपिजोटोमी दे के डिलीवरी करवाते हैं, हम लोग कहते हैं कि एपिजोटोमी नॉर्मल डिलीवरी विथ एपिजोटोमी, अब तो लिखते भी नहीं है, अब तो लिखते हैं नॉर्मल डिलीवरी, यानी एपिजोटोमी जो दिया वो नॉर्मल है, तो वो मर्म उपहत है, उसका विटप मर्म जो है वो उपहत हुआ है और उसकी वजह से फ्रिजिडिटी आती है। तब हमें पुष्पधनवा रस का सेवन करवाना पड़ता है और आता है रिजल्ट। पुष्पधनवा देने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन ये मर्म उपहत होने के लिए उसको पहले से ही अगर हम गर्भिणी परिचर्या का पालन करवाए तो उसको नॉर्मल डिलीवरी जो है वाकई में होगी। अष्टम मास में हम लोग योनि पीछू धारण करवाते हैं, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आगे की डिलीवरी में एपिजोटोमी दी हो तो भी हमें इस डिलीवरी में बिना एपिजोटोमी दिए डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी मिलती है। संतान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज के समय में तो सब लोग संतान नहीं चाहिए, वो कौन ये झंझट में पड़े। ये फोटो ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगी कि संतान क्यों होना चाहिए। दिस इज जॉय ऑफ लाइफ। मैं तो बोलती हूँ कि आपकी जो संसार बगिया है, द गार्डन ऑफ योर सोशल लाइफ, योर मैरिड लाइफ, उसमें ये फूल खिले हैं, ये पुष्प तो बिल्कुल चाहिए, अपने जीवन को इतने सुंदर कुसुम से सुगंध से भर देते हैं, बशर्त आपने उनको क्या दिया है। आपने बोला, मेरी एक स्टूडेंट थी, मेरी खुद की स्टूडेंट थी, वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसको जीपीएससी क्लियर करके क्लास 2 मिल गया लेक्चरशिप। फिर उसको क्लास 1 बनना था, जीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी थी, तो वो बार बार अपने पेट पे मारती थी और बोलती थी कि ये कहाँ बच्चा अभी आ गया, और देखना मैडम ये लड़का ही आएगा। बोले तेरे को क्या चाहिए, लड़की चाहिए, लेकिन इस वक्त क्यों आ रही, 2 साल के बाद नहीं आ सकती, मैं तो 2 साल के बाद मैथुन कर सकती थी, अब क्यों कर दी, एमडी गायने के इतना भी पता नहीं तेरे को, बच्चे को क्यों कोस रही है, यू आर एट फॉल्ट, व्हाई डिडंट यू यूज कॉन्डोम एंड एवरीथिंग, बच्चे को मत कोसो। उसके बाद उसको बेटी ही हुई, वो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिसर भी हो गई। अभी उस बेटी के बाद उसको दूसरा बच्चा हुआ नहीं, देखिए आप, इसको कुदरत बोलते हैं। उसने काफी मेडिसिन ली, फिर उसके हस्बैंड ने बोला नहीं बस अभी एक बच्चा है, उसी को बड़ा कर लेते हैं। जिस तरह मुझे मानसिक यातना मिल रही थी, वो अपने पेट पे जोर जोर से मारती थी चालू सर्विस में, वो घर पे भी ऐसा ही कुछ करती होगी। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, ये जो है इसी को बड़ा करो। अभी बच्ची जो है वो एसएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी आंख जो है वो बहुत बहुत निर्बल आंखें हैं उसकी, वो कैसे आगे जाके कुछ अपनी कैरियर बनाएगी। तो ये मान्य अगर नहीं दिया है तो ये जो आनंद इस फोटो में मिल रहा है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और फिर हम बोले कि ये ऐसा कैसा बच्चा आ गया, भाई आपने जो दिया वो बच्चा आया। अब ये नेट पे एक क्वेश्चंस रखे गए हैं, आई टेक पुष्पधनवा रस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फॉर लो एमएच। वो एएमएच है क्या है, वो किसी को अगर पता ना हो तो इसके लिए मैंने रखा है, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो। बट माय फेशियल हेयर्स आर इंक्रीज्ड आफ्टर टेकिंग पुष्पधनवा रस। पुष्पधनवा रस जो है वो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। इसने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दैट्स व्हाई आई हैड टू गो फॉर एएमएच, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ ये एक लाइन लिखी है। उसके अंदर कोई भी हम लोग एडवाइस नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसमें दिया गया है कि आप ये करें वो करें, इससे आपको फायदा होगा।
दैट्स नॉट टू बी डन, क्योंकि उसने हाफ हमें दी है। इसलिए मैंने आगे जो स्लाइड्स रखी थी वो इसी के लिए रखी थी। पुष्पधनवा रस यहाँ बदनाम हो रहा है। पुष्पधनवा रस का यहाँ पे कोई दोष है ही नहीं। फेशियल हेयर्स जो है वो पुष्पधनवा रस की वजह से नहीं बढ़ा। अगर उसको पीसीओडी होगी तो फेशियल हेयर जो है वो पीसीओडी का एक लक्षण है। तो उसको पहले शायद फेशियल हेयर होंगे और अब उसका ध्यान गया, ऐसा भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो इस तरह की अगर कोई कमेंट आए तो डिटेल में हिस्ट्री लिए बिना दिया गया औषध जो है वो किस तरह औषध को और आयुर्वेद को बदनाम करता है। देखिए, ये मैंने सीधा ही लिया है। देखिए मेरा फॉन्ट और उसका फॉन्ट भी अलग है। ये दूसरा है। आई एम ए हेल्दी पर्सन 60 years old and have erectile dysfunction. My doctor has prescribed वाजीकर रसायन, पुष्पधनवा रस, मकर ध्वज रसायन, सभी दो। पुष्पधनवा रस तो 3 tablets. I've been using for 4 weeks. How long to continue before I will see the benefit? भैया 60 साल का बुढ़िया है, अब तुझे क्या चाहिए? बच्चा तो लाना ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ओल्ड एज है। शरीर की धातु क्षीण हो चुकी है। आपको जाना है संन्यास आश्रम की ओर। वानप्रस्थ में ऑलरेडी हो। आपको करना क्या है? और इतनी सारी औषधियां, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ये दवाइयां कैसे काम करेगी? अब ये बात जो है, मैं अपना बड़ौदा का एक केस था। कपल जो है वो, हस्बैंड जो है वो करीब 55 years के थे, वाइफ जो थी वो 45 की थी। 10 साल का डिफरेंस था दोनों के बीच में। और हस्बैंड ईडी का प्रॉब्लम लेके आए और बोले कि मुझे ईडी है और मुझे बच्चा चाहिए। बोली सर आपकी उम्र 55 years है, शादी को कितना टाइम हुआ? शादी को तो 12 साल हो गए मैडम जी, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे थे बच्चा ना हो, लेकिन अब मुझे बच्चा चाहिए। फिर मेरी तो आदत है डिटेल हिस्ट्री लेने की। मेरे जो गुरुजी थे मालदान बारोड़ साहब, MH बारोड़ साहब करके सब उनको पहचानते हैं, इज नो मोर, लेकिन आज भी ही इतना पढ़ा है मुझे कि आई गेट गाइडेंस फ्रॉम हिम। तो वो बोलते थे डिटेल माइन्यूट हिस्ट्री लो, उसमें से कुछ ऐसा निकलेगा कि जो आपको तुरंत संप्राप्ति समझा देगा। ये साहब थे, उनको तो ऑलरेडी मधुमेह था, और मधुमेह कब था? 20 साल की उम्र से। उनको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। शादी की, बच्चा ना हो उसका प्रयत्न भी किया, 1-2 नहीं 12 साल। और अब 55 साल की उम्र में जब वाइफ की उम्र 45 years है, शी इज नियरिंग मेनोपॉज, तब आप बोल रहे हैं कि तू मुझे बच्चा दे। इज टॉर्चरिंग हिज वाइफ, इज टॉर्चरिंग हिज ओन सेल्फ, और जो रिजल्ट चाहिए वो तो मिलने वाला ही नहीं है। फिर भी मैंने उनको बस्ती शुरू की, मात्रा बस्ती दी, क्योंकि मुझे पता था ये व्याधि तो जो है, मैंने पहले ही बताया ना, हम गवर्नमेंट स्ट्रेटा में पेशेंट को ना नहीं बोल सकते। तो ये पेशेंट जो, उसको मात्रा बस्ती दी। इतना केयरलेस पेशेंट, किसी में भी हमको कुछ भी बोलो, आपको कुछ आता नहीं, इसके रिजल्ट नहीं मिलेगा, इससे ये इससे मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो भैया आके हमारा सर क्यों खा रहा है? लेकिन हम नहीं बोल सकते गवर्नमेंट स्ट्रेटा में। तो ऐसी ही कुछ बात ये बुजुर्ग ने यहाँ पे रखी है। While we try to teach our children all about life, actually our children teach us what life is all about. Life is not about sex and sex. It's about so many pleasant things. And Pushpadhanwa Rasa actually helps us understand those things, for what the human body has been made and for what our children are supposed to do. Is also Methya. Pushpadhanwa Rasa is also Methya. Na tu jantu kama, kamanam upabhogena shamyati, havisha krishna vartma iva, bhuya eva vivardate. कोई भी कामना उसके उपभोग से शमन नहीं होता। जिस तरह अग्नि में आप घी डालो तो अग्नि बढ़ता ही जाता है। इसीलिए आजकल साइकोलॉजिकल डिजीजेस बहुत बड़े हैं। सिर्फ सेक्स नहीं है जीवन में। देखिए, ये चरक ने बताया है, पूरी संप्राप्ति चरक की बताई हुई है। मेरे प्रोफेसर KM शर्मा साहब, कृष्ण मोहन शर्मा साहब कोटा से थे, वो गुरुजी की मैं ऋणी हूँ। ये पूरी संप्राप्ति उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे सिखाई है। संग यानी किसी चीज में मन का अटक जाना, उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, उससे कामना उत्पन्न, इच्छा बढ़ती है।
इच्छा की पूर्ति न होने की वजह से क्रोध आता है। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति जो है सम्मोहित हो जाती है, और जब व्यक्ति सम्मोहित होती है तो स्मृति का भ्रंश होता है। और साहब बोलते थे स्मृति भ्रंशात् विनश्यति, ऐसा बोलते थे, बहुत बार बार ऐसा बोला करते थे। बुद्धि यानी विवेक का नाश होता है, एंड दैट लीड्स टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स विच वी आर सेइंग ग्लोबली ये सब देखने को मिल रहा है। थैंक यू एवरीबॉडी। Parulji, thank you very, very much. You have taken us into the wider determinants of not only one Aushadhi, but also the wider determinants of how to appreciate the many multifaceted dimensions of any Aushadhi and how it is to be applied and administered and analyzed. Bahut bahut dhanyawad ji. Please stay with us. There will be questions. Pavanji will take us onward. But thank you again, Parulji. Very, very, very fascinating expression of how to understand this Aushadhi in all its perspectives. Bahut bahut dhanyawad ji. Now I would like to invite Dr. Pragyan Tripathi from Ujjain, the city of Mahakal, Lord Mahakal. Dr. Pragyan Tripathi. I hope now you are free from practice. Dr. Pragyan. Am I audible to you, Dr. Pragyan Tripathi? जी सर, प्रणाम कर रहा हूँ। हरिओम हरिओम, स्वागतम स्वागतम। Dr. Pragyan has launched that Narmade Ayurvedam Panchkarma Center, products, factory, young, energetic, dynamic doctor from Ujjain. Welcome. Audio. It's completely my pleasure to be a part of this webinar. Again, I'm really thankful to Dr. Pawan Kumar Sharma sir. Am I audible? Yes, loud and clear. Thank you, Yes, sir. Pragyan. Thank you so much. I think a lot has been already said about Pushpadhanwa Rasa. Well, ma'am has explained it practically. The less amount of things are still I have given a chance, so I will definitely try to explain what how I see Pushpadhanwa Rasa. Yeah. So I'll be giving examples of some of the patients which I'm getting here. Actually, I had a patient from Bangalore. She had bilateral tubal blockage since 10 to 12 years, and there was a lot of menstrual disturbance also. For that, I had given Vanga Bhasma. Yeah. So I'll start from there, and on the same way, her husband was also suffering from azoospermia sort of condition. And Pragyan ji, which is there is like a little, absolutely- thoda sa, Pragyan ji, sorry to interrupt, thoda sa background Yeah, please. आवाज चल रहा है जी आपके, शायद आपके वहां से होगा. Okay, If there fine. is a- So I'll try to. If there is a way to I'll close try the to do door it. or something. Sure. Then I'll try to do it with some other media. I don't know if the noise is coming from your microphone or from elsewhere. Thank you, Pragyan ji. आपकी आवाज नहीं आ रही है? Pragyan ji, namaskar.
थोड़ा सा अग्निहोत्री जी, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड चल रहा था, पता नहीं कहाँ से, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग। और डिवाइस पे शिफ्ट किया है। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हमारे यहाँ आवाज कैसा है जी? साफ जी जी बिल्कुल, अब मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, चलो जी। बिल्कुल। तो बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, वो एक एक इंग्रेडिएंट यूजुअली एज एन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, ऐसे एक एक इंग्रेडिएंट्स हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। या जैसे कि स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट रस सिंदूर। इफ in our practice, if I want to stimulate the potency of ashwagandha or say potency of shatavari or potency of safed musli, I am going to add ras sindoor to it, and it is going to accelerate the efficacy of that particular drug by at least by double strength, or sometimes if the ras sindoor is prepared very properly, then even 10 times, 10 times also the potency of the drug will be accelerated. The power of the drug will be accelerated. Moreover, as far as Vanga Bhasma is considered, which is important part of Pushpadhanwa Rasa, Vanga Bhasma I have used in infertility cases, which are like which are not able to, get pregnant. The ladies which are not able to conceive from like say 8 to 10 years of marriage, and they were kept on trying, and there are so many complications. For such cases, with Vanga Bhasma added to one or the other, some powder ingredient like ashwagandha or shatavari, if we are giving Vanga Bhasma, especially after doing Virechan, yeah, definitely, because Pushpadhanwa Rasa is a Rasayan kind of Vajikaran category, where we are just going to get the results immediately. So if Acharyas are suggesting, if you want to get result immediately, then definitely you should start such Rasayan and Vajikaran Dravyas after proper Shodhan of the body, right? After proper Virechan or Vaman. So in the patients where we are getting troubles like sort of when the patients are coming with infertility or impotency, and their infertility is like a national problem of their family. Yeah, like sometimes people are coming with their social issues, like they are going to get divorced, or like they are not at all accepting the girl as a wife, like because 10 to 12 years of marriage are over and there are no kids at all. Whatever the reason is, like tubal blockage or improper periods are there, or this pituitary, thyroid and ovarian axis, all these hormonal cycle is not working properly. For all such cases, single drugs which are mentioned in Pushpadhanwa Rasa, let's say Naga Bhasma, Vanga Bhasma, or even Loha Bhasma. I should tell you about Abrak and Loha. When patients are coming to me who are suffering from, who are facing infertility or impotency from like say 5 to 10 years, and in most of such cases, we really find that the hemoglobin will be like standing from somewhere between 8 to 10 or maximum 11. Okay, for such patients, they are taking medicines to increase the hemoglobin in all sorts of pathies, but there is a very wonderful combination of Abrak and Pipali. They are telling that you should take Pipali. They are telling that you should take Abrak Bhasma like 125 milligram and just add 1/4 teaspoon of Pipali powder to it. And if you are giving it for like say 1 or 2 weeks, there will be very good amount of increment in all the Rakta Dhatu, and hemoglobin is a part of it, definitely. So whatever medicine we are going to give, definitely it should first enhance the quality of Rasa Dhatu, which is the very first Dhatu, and then Uttar Kram should be like, carried out. So like Rasa Dhatu, Rakta, so in that order when we are going, then definitely Ras Sindur is going to work for Rasa Dhatu,
After that, they are talking about Rakta, Mansa, Med, Asti, Majja, and moreover, definitely at the end of the day, Shukra. They are giving Bhavana of Dhatur Patra, Vijaya, Yeshti, Madhu, Shalamali. Shalamali Mool, I want to talk about it. Shalamali Mool, they are using in the name of Kamaraj in Madhya Pradesh. The folklores, if you are going to Amarkantak or Chhindwara, such belt, where there are lots of folks which are giving medicines, aphrodisiac medicines. In that category, the majority of herbs which are being used, out of them, one of the most important herb is Kamaraj. They are telling that these are the pieces of a herb which is known as Kamaraj, and that Kamaraj is nothing but Shalmali Mool. I have gone to them, I have inquired a lot, and finally I found that Shalmali Mool. So, and Shalmali Mool flowers, the Shalmali plant flowers, they are using for Pradar also. For females, they are using it for Shwet Pradar, Rakta Pradar, and Menorrhagia, Menometorrhagia, like that conditions. And its root, they are using as an aphrodisiac for male patient. So Shalmali is such a wonderful tree where the flowers are used for gynec purpose and the root is used for, male potency and aphrodisiac purpose. So this is a wonderful thing that they have taken Shalmali Mool Kwat, yeah. Definitely Vijaya is there. We already talked about Vijaya that day a lot. Vijaya is a wonderful drug which enhances the property of anything you are adding to, and definitely a sedative action is always needed to enhance the aphrodisiac activity. So definitely Vijaya is going to do that job, and Dhatur Patra is going to add like the feather in the cap of Vijaya. So Dhatur Patra is definitely going to stimulate. It is a Visha category. See, when we are taking anything which is which we are collecting from a Visha or Upavisha category, Ayurveda specifically says that when we are talking about the gunas of Visha, they are telling that it is going to act immediately. Yeah, and we nowadays are living in such an era where we have drugs like Viagra and all in the allopathic market. So for that, if you really need a fast acting drug, like how fast acting is, like you have to take in the evening and by the night you should be happily going for the act. That fast, if you want a drug to act, definitely you need to add Visha category of dravyas to it. In Ayurveda, in my practice, we are adding Kupilu many times. Kupilu seeds, Shodhit Kupilu seed bhasma we are adding. Dhatur Patra Swaras, some folklore Vedyas are preparing bhasma of Dhatur fruit also. Yeah, Dhatur fruit, they are giving the coating of Mritika, that mud, for 7 times. Then they are putting it for Putta and they are preparing bhasma and they are giving that bhasma, that particular ash of Dhatur Phal, with the tip of the needle in milk, butter, or in curds, or sometimes with ghee, and that is acting like anything. You don't have to take anything else when you are taking a drug from the category of Visha and Upavisha, because they are kept in that. See, nobody is going to die by die of taking Kupilu or Datura. But what is actually happening is they are such a drugs which are acting very quickly. And if you are putting some particular herb or some particular combination over the back of that particular Visha and Upavisha, definitely it is having Vivai and Vikashi Guna. So it is going to take the efficacy of that drug, the effect of that drug to the deepest tissue immediately, like say not within fraction of seconds, so at least within 1 hour you can see the result. So Pushpadhanwa Rasa is such a category of drug, such a category of wonderful medicine in Ayurveda, which is going to stimulate all your body, it is going to create a kind of horripilation in your body. That kind of stimulation will be there with a properly prepared Pushpadhanwa Rasa. Definitely, properly prepared Pushpadhanwa Rasa is going to give absolute aphrodisiac action in your body within 1 hour, within 1 to 2 hours. But it has to be
be prepared properly. If you are taking very good quality of Vijaya, Dhatur Patra, Yashti Madhupat, Shalmali Mool, we are giving single drug in my practice. We are using Shalmali Pushpa and Shalmali Mool. Tamul Patra Swaras is also like that. So for Nag Bhasma, I want to tell you one thing. There is a paper published by Dr. Mahi Mishra from SDM Udupi that effect of Nag Bhasma for the proper growth and development of fetus during pregnancy. So Nag Bhasma is such a wonderful, gift by Acharya Nagarjuna. Acharya Nagarjuna has explained a lot about Nag Bhasma. It's such a wonderful, I won't say invention, but definitely a discovery. Yeah. So Nag Bhasma for female infertility and male infertility. See, in India, in a country like India nowadays, when females are also like busy with their all the household works, and even they are working outside in such a hectic schedule, definitely we need a very wonderful stimulator. And most of the times patients are coming to us, like the couple is coming to us and asking us for a medicine, for such a medicine which is going to stimulate, which is going to give a very good stimulation within very short period of time, and they want a medicine for both the couple. They need the medicine. Yeah. So I think as far as my study goes, Pushpadhanwa Rasa can be used as a very good stimulator, nervous system, nervine system stimulator, especially to enhance the blood circulation for like the penile blood circulation without affecting your blood pressure. Yeah, because Viagra sort of drugs are definitely going to create a hustle inside your circulatory system. But Pushpadhanwa Rasa very safely, very accurately, and very with lot of care, it is going to stimulate your nervous system, and it is going to create a very happy atmosphere inside your brain, because the bhasmas like Vanga, Naga, and Abhrak definitely, which and it is not always about the spontaneous activity. If you want to, when acharyas, some patients are coming like before marriage, they want to, they are planning for marriage, but sometimes males are coming that I don't feel I'm prepared for marriage, and I think there are some issues with me. I don't have a proper timing. I have some ED sort of disorders, and sometimes I feel like the quality of semen, the quality of sperm is not so proper. It is like a lot of liquefaction I feel whenever I do it. So for such patients, in my clinic also, we are running a program like premarital Kaya Kalp. Okay. So that kind of things are now very good and very easily acceptable by the society. And it is for the society. When before, like 2 to 3 months before patients, before marriage, patients are coming to you and they are asking you, Vaidiji, just get me properly prepared for the marriage, physically, mentally, psychologically, spiritually, in all the ways. So as previous speaker ma'am also told about Daiva Vyapashray Chikitsa. So when we are adding bhasmas like Sahasraputi Abrak Bhasma, Shatputi Abrak Bhasma, which are prepared after hundreds and lakhs of chantings of Lord Shiva, when we are giving a bhasma like Vanga and Naga sort of preparations, definitely it is going to create a very positive atmosphere inside the brain. If you are planning a short Virechan or Shodhan for the patient, and then you start giving Pushpadhanwa Rasa, at least say for 2 to 3 rounds. Rounds means at least 2 to 3 months. If you are giving Pushpadhanwa Rasa for male and even for female, it is going to help them to create a very good atmosphere. Like Ayurveda says that Kshetra, Ambu, everything should be properly prepared for a good fetus to take place there, a good embryo to establish there, a good baby to be created at the end of the day.
So for that, a proper stimulation is required. And Pushpadhanwa Rasa is, I think, a wonderful stimulator for male and also for female. Because when I am seeing the ingredients of Pushpadhanwa Rasa and when I am using it for my practice, I don't find anywhere where it is lacking or it could be strictly restricted to male. It can be given to the female, because nowadays it is a big problem when they are started working during periods also. So like that, there will be a lot of vata vitiation many times, and as a result of that, there won't be any stimulation when they are planning for the act. So a very good stimulator could be Pushpadhanwa Rasa. Definitely, along with any preparation, some preparation of Paunch, Kapi Kachu, Atma Gupta also is advised. But I think when the Tur Patra or Vijaya Swaras sort of things are there, when Yashti Madhu sort of things are there, Yashti Madhu was my drug when I was doing PG. So I know lots of things about Yashti Madhu. Yashti Madhu is a very coolant energy booster, and there are lots of very safe steroidal properties in Yashti Madhu. So when a male and female, by any chance, if they are having some trouble or any kind of disease or any kind of weakness or any kind of mental sickness in their body, in such cases also, Acharya Charak, in the beginning of his Samhita in Rasayan Adhyay, they are telling about Yashti Madhu as a Medhya Rasayan also. So I think a lot of you have seen the movie, like China, some China market, something was there. They were selling rabdi, the ingredient, the powder of rabdi they were selling as an aphrodisiac product, and they were very soon it was the hottest cake in the market. So the doctor with their team was telling that, see, 90% in Dikra, they were Gujarati families. See, Dikra, there 90% of the problem lies inside the mind. When the mind is open, mind is happy, and mind is prepared, definitely the body is prepared. And Acharya Charak is telling the best Vajikarak Dravyas are definitely both the partners for both the partners which are standing in front of each other and getting prepared for the act. Definitely. So medicine always comes at the second level, where we need some mental stimulation, some nervine stimulation, and a very good and happy atmosphere inside the mind, and a lot of enthusiasm in the body. So Pushpadhanwa Rasa is the drug of choice as far as my experience goes. So it can be used, it must be used. At least for male patients, we are giving 1 to 2 tablets twice daily. And for females, it can be given at least 1 tablet PD can be given with milk. So this is what I want to say. I think a lot has been already explained by the previous speakers. Thank you so much for giving me a chance. Jai Ayurved, Jai Bharat. Thank you so much. Thank you, Pragyan. Thank you. Excellent. Very nice. You have compiled everything. Madam Parol, you and Piyush all have highlighted Pushpadhanwa Rasa in very nice way. Just to inform all, Mr. Jagdeep Dhankal has been selected as the candidate for Vice President of India with Joshi. So this is just coming news. So with this, I would like to hand over the stage to Professor Madan Thangvelu sir. Madan sir, welcome. Pawanji, thank you. Yaha, where is Pragyan? Namaskar ji. Pragyan ji, एक सवाल आया यहाँ हमारे पास कि can you please share the botanic name of Shalamali? कि आपकी, so there is some confusion. Is it Bombax malabaricum or Bombax Siba? ये क्या चीज है जी ये शालमली? क्योंकि आपने काफी कुछ बताया इसके बारे में. जी, Bombax malabarica, I think, is a very common tree which is all around Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, everywhere it is there. Especially that spinous variety which are having spikes in the bark.
अच्छा अच्छा In अच्छा, समझ Ayurveda, गया। in Ayurveda and folklore, it's very famous that you take out the spines of that and just, uh, just rub it Great. over a stone with milk or some water and just apply over the pimples. So it's a very common practice. That common shalmali tree, its flowers are wonderful, working This for is brother, and its roots are this is amazing the one with aphrodisiac the actually. this is the tree with the big thick red flowers. क्यों? लाल Exactly, that लाल one. रंग का हो। चलो जी. So it's Exactly. one of the, it's either Bombax malabaricum or Bombax seba. We will follow it through. Other question I was going to ask you was, how many putta of आपने abrak की बात जो बताया, and you said you in the end you mentioned about gajaput or how do you know, these are all technicalities. आप लोग तो फटाफट कहते हैं कि अबरक की भस्मा यूज करके हम कर देते हैं, but the technicalities you never tell us, you know. So लोग बाग, people get confused. ये WHO वाले अब आएंगे, अब कहाँ? जामनगर. अब Yes. आप लोगों से सुने कि अबरक भस्मा की प्रयोग करके हमने पूरा कर दिया, पूरा साफ, पूरा respiratory infection, पूरा respiratory, and they will be coming from 180, 190 countries. So first of all, they will be completely lost. क्या चीज है ये भस्म? दूसरी चीज अबरक. तीसरी चीज ये लोग कहते हैं पुट, क्या चीज? एक तो कहता है कि मीटिंग में फटाफट कहते हैं कि गजपुट, एक तो कहते हैं सहस्रपुट, और एक तो कहता है कि हो ही नहीं सकता सहस्रपुट आजकल. तो पूरा जो विदेश से लोग बाग जो आएंगे, they will be completely confused. वो वापस जाके कहेंगे पूरा बेवकूफ बना रहे हिंदुस्तान वाले. अब इसके लिए एक इलाज होनी चाहिए. So number one. दूसरी चीज, standardization of these formulations. तो पहली जो our पीयूष जी ने जो बताया, there was a controversy there कि the formulation is not standardized. ठीक है ना जी? एक तो है you are using strange compounds, strange material. भस्म हमें तो पता नहीं क्या चीज है भस्म. और इस आपके देश में 10-12 कंपनियां हैं, हर एक के पास कुछ और स्टैंडर्ड्स. तो वहां हो गया गोल सारा, जो कुछ कहनी थी पूरा गोल. ठीक है ना जी? अब पवन जी तो कह दिया कि हमारे पूरा वैशाख रत्नावली में है पूरा देश की पूरा फॉर्मुलेशन. Of the people who are coming to the meeting from 180 countries, they will never understand Sanskrit. They will not understand what is Vaishali Ratnavali. They will not understand anything. Ab kaise sikhaye inko? So that is one question. Now, the wider determinants, jo aas-paas hai cheez, ki from moving away from the Western medicine, ek dawai ye goli khao, तो थोड़ा सा चारों तरफ देखे, होलिस्टिक थिंकिंग, वो तो दे दिया पारुल जी ने पूरा जो कुछ दिया, very detailed, इतनी elaborate. So we are grateful for Parul ji for her very elaborate description कि क्या कुछ होनी चाहिए. अब आपकी चीज, there are some details. इसमें there is something happening. We have to believe the practitioner. You are treating patients, and we say every patient is a textbook. ठीक है ना जी? Every patient is a textbook for that condition. हर एक patient is a unique patient, or हर एक patient is a unique textbook. So we have to listen to you. आपने जो इलाज किया, we have to respect you and understand. मगर आपकी तरफ से भी हमारी जो सवाल जो उठती है, उसकी we need your help. When I say we, I'm saying 200 देश से जो आएंगे लोग जामनगर की तरफ, we have to give them some satisfactory answer about this series of this traditional formulations that we are discussing here, you know. So this start of this, what Pavanji has designed for us in this interaction is a first step towards looking at those questions and difficulties. हो सकता है कि जो दवाई हमारे पास है, that are the most magical दवाई for the whole world. और पवन जी ने कहा कि
अलग अलग देशों में, हिंदुस्तान में ही, भारत में ही, अलग अलग रीजन्स में, नॉर्थ में, साउथ में, हो सकता है कि these औषधीज have to be used differently, ठीक है ना जी? साउथ में कुछ और, नॉर्थ में कुछ और, ईस्ट में, वेस्ट में कुछ और. सो वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट. उसके ऊपर भी थोड़ा वो ध्यान देनी है. तो दिस इज माय इनिशियल कमेंट्स and I think we will open the floor for discussions. हमारे साथ है. Should I respond to it, sir? पवन जी थोड़ा एक हमारी जहाँ साहब से थोड़ा सुन के फिर आपसे सुनेंगे. जहाँ साहब है हमारे साथ. हमारी तरफ से कि हो सकता कि जैसे क्लिनिशियन प्रज्ञान या पीयूष जी, इनके पास होगा रहस्य जो होती है हर एक पेशेंट इज अ टेक्स्ट बुक. So how to bring all this knowledge together? जहाँ साहब प्रणाम जी. नमस्कार नमस्कार. प्रणाम जी. Thank you for staying. आप तो पूरा you were with us पूरा प्रोग्राम. आपसे सुने जी थोड़ा इसके बारे में. सभी लोगों को मेरा प्रणाम. मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी. नमस्कार जी. बहुत अच्छी चर्चा हुई और मैडम ने तो इतना बढ़िया और इतना विस्तार से प्रेजेंट किया. डॉक्टर साहब आपके फोन में से थोड़ा सा पता नहीं बैकग्राउंड नॉइस आ रहा जी. मेरे फोन में? हाँ जी, थोड़ा सा कट आवाज आ रहा थोड़ा. नाउ अभी भी है कुछ ऐसा? हाँ जी, अभी भी है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी वी वांट टू लिसन टू योर कमेंट्स. दैट इज बिना डिस्टरबेंस अगर हो सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा. नहीं, मेरे आसपास कोई नॉइज नहीं है. नहीं जी, हो सकता है कि हैंडसेट में से कुछ आ रहा हो. तो मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब एक काम करो जी, थोड़ा एक बार बंद करके फिर शुरू करना जी. एक मिनट जी, एक मिनट देखो, यहाँ से करेंगे म्यूट. नहीं लगता आपके, हाँ आपकी हिस्से नहीं, किसी और से आ रहा है जी. एक मिनट जी, थोड़ा देखें. एक मिनट जी, थोड़ा देख के शायद. हाँ जी मैडम ने बहुत विस्तार से और बाकी जो दो वक्ता रहे इन्होंने भी ड्रग के बारे में बहुत कुछ. सबसे मेन है कि जितने भी हमारे ड्रग हैं उसमें सिंगल हो मल्टीपल हो, तो बहुत सारे ड्रग हैं जिसमें कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल नाम और कंट्रोवर्शियल चीजें आ जाती हैं. बट इन दिस डॉक्टर साहब आपका आवाज कट रहा जी थोड़ा सा, शायद इफ यू कैन बी स्लाइटली थोड़ा सा और नजदीक अगर फोन रखें. हेलो. हाँ जी, आ गया जी, शाबाश. तो पुष्पधनवा में जितने भी मटेरियल हैं दे हाँ आर जी. अनकंट्रोवर्शियल. इसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल मटेरियल नहीं, चाहे प्लांट मटेरियल हो या चाहे. अब रहा कि भस्मों की बात है, तो भस्मों के संदर्भ में जरूर मैं कहूँगा कि भस्म अगर सही तरह से नहीं बना हुआ है तो आप उससे अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो आपको बढ़िया एक्शन देगा. चाहे अदरक हो या चाहे भंग हो या चाहे नाग हो. और ये सारे के सारे ड्रग जो हैं ये मतलब इतने पोटेंट हैं, इतने हाईली इफेक्टिव मटेरियल हैं, लेकिन सवाल है कि सही तरह से ये कन्वर्टेड है या सही तरह से बने. तो यही है कि निर्माण की प्रक्रिया जो है इसकी वो सही होनी चाहिए. और अगर सही होगा तो इसमें एक एक चीज नागस्तु नाग सततुल्य बलम ददाति. नाग भस्म जो है वो कहता है कि 100 हाथी का बल देता है. इतना बल. भंग को अलग बल्य कहा कि सिंहो यथा हस्तिगणम निहन्ति. डॉक्टर साहब थोड़ा आपका आवाज कट रहा है जी, फिर थोड़ा सा नजदीक अगर आ जाए. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी. तो कहा कि सिंहो यथा हस्तिगणम निहन्ति तथैव बंगो खिलमेह वर्गम. अब जैसे 100 हाथी के झुंड को अकेला एक लायन डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है, इसी तरह से जितने भी प्रमेय
डिसऑर्डर्स हैं उसको अकेले भंग समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो इस तरह की पोटेंसी हमारे आचार्यों ने बताया। सवाल ये है कि क्या हम जो भंग भस्म या नाग भस्म बना करके यूज कर रहे हैं वो कहाँ तक सही। अपरा के बारे में तो जैसे कि आपने चर्चा किया है कि सहस्त्रपुटी और शतपुटी और फिर जो सामान्य उपयोग के लिए लोग 20, 25 और 50 फुट दे करके उपयोग करते हैं। तो सवाल ये है कि have we followed the shortcut way to prepare abrak bhasma or with proper process we have followed? तो सवाल इस बात का है कि हमने सही बनाया। दूसरा, अगर हम सहस्त्रपुटी की बात करते हैं तो 1 फुट देने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन का समय चाहिए। तो 1000 फुट देने के लिए कितना समय चाहिए? तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अबरक भस्म अगर सहस्त्रपुटी चाहिए तो कितना समय चाहिए। होता ये था पहले कि फादर बनाता था, उसका सन यूज करता था, फादर यूज किया और फादर यूज करते करते और उसके बाद फिर अगली पीढ़ी उसका सन भी आयुर्वेदिक चिकित्सक बन के आएगा और वो उसको यूज करेगा, वो बनाएगा, उसका आगे का जनरेशन यूज करेगा। तो इस तरह की स्थिति थी और आज की स्थिति कुछ बदल गई है। कोई अपने से बना भी नहीं रहा है, नहीं ही बना रहे हैं, सब फार्मेसी पर डिपेंड कर रहे हैं। फार्मेसी जो शतपुटी खा करके दे रहा है वो क्या दे रहा है वो फार्मेसी का, लेकिन जो शतपुटी का कंसेप्ट है वो अगर शतपुटी है तो फिर उसके एक्शन की बात आप अगर अपने से बनाया हुआ है तभी उसको फील कर सकते हैं। तो निर्माण का जो सवाल है, निर्माण के लेवल पर इट शुड बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड बाय द स्किल्ड, बाय द एक्सपीरियंस्ड physician, those who are preparing their medicine by their own, उनके द्वारा। और मैं एक छोटा सा एक उदाहरण या कहानी, भंग भस्म अनेक तरह से सब बनाते हैं। यादव जी ने हमें छूट दिया कि जारित कर लेने के बाद हम उसको बीत संकल्प प्रयोज्य पैदा करके भंग का जब प्रोसेस करते हैं तो दे आर इन सेवरल स्टेप्स आते हैं। शोधन करते हैं, भंग का शोधन करने के बाद जारण करते हैं, तो जारण करते हैं तो दैट इज रोस्टिंग प्रोसेस और बाय दैट रोस्टिंग भंग कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम ऑप्टिमम ऑक्सीडेशन। भंग जो है वो करीब ऑक्सीडाइज प्रोसेस होता है कि खाली हर्ब से हम ट्रीट करते हैं तो वो मोस्टली ऑक्सीडाइज्ड होता है। जहाँ पर सल्फर डाल देंगे, जैसे स्वर्ण भंग का प्रिपरेशन है तो स्वर्ण भंग में सल्फर यूज करते हैं, वहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो अधिक संभावना उसकी सल्फाइड की होती है। तो अगर हम डॉक्टर साहब आपका आवाज कट रहा, फिर थोड़ा सा। हेलो, हाँ जी, थोड़ा और नजदीक आकर आए जी माइक्रोफोन की। बिल्कुल नजदीक रखा हूँ। अच्छा, पता नहीं कैसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारे जब मैं जामनगर था, that was the period of 1978 or 82, within that, कुछ साधु सन्यासी भी हमारे पास आते जाते थे और वो एक्सपीरियंस रखते थे कैसे रसिंदूर बना लेना, कैसे भंग भस्म बना लेना, शास्त्र में जो चीजें हैं और प्रैक्टिकली कुछ ऐसे सरल तरीके उनके पास होते थे कि वो बना लेते। तो एक कहानी उन्होंने, एक ऐसे ही साधु घूमते फिरते आए, उन्होंने एक कहानी बताया कि हमारे गुरु जी भी अच्छे भंग भस्म बनाते थे, तो एक बार उनको प्रॉब्लम हुआ कुछ यूरिनरी, तो जैसे हिमेचूरिया जैसा कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि भंग भस्म खिलाओ हमको। तो और भंग भस्म सब जो कुछ भी उनको दिया जा रहा था पहले से, उससे ज्यादा कोई लाभ। गुरु जी आपकी आवाज बहुत डिम आ रही है, बहुत कट कट के आ रही है सर। आवाज क्यों कट के जा रही है? बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रही है, एडिट साउंड की तरह।
डॉक्टर साहब शायद पवन जी से थोड़ा सुन के आप फिर आ जाएं जी वापस। पवन जी कुछ इलाज हो तो बता दीजिए जी, झा साहब को कुछ आपकी तरफ से वहीं से कुछ हो। गड़बड़ है सर, कुछ नेट की गड़बड़ है। आपका बिल्कुल साफ, हाँ जी आपका बिल्कुल साफ आ रहा है। शायद लगता है कि डॉक्टर साहब की वो माइक्रोफोन में कुछ है, थोड़ा वेट करें या आपसे सुने जी। पवन जी आपसे थोड़ा सुन के फिर झा साहब के पास हो। सर इन 15 सालों में मैंने कम से कम क्विंटलों बसें बनवाई है। क्विंटलों, जितना एक इंस्टीट्यूट नहीं बना सकता उतना मैंने झंडू में बनवाया है, बनवाया भी है, क्वालिटी कंट्रोल भी किया है और खरीदा भी है। एक माथे में बार बार इन चीजों पे चर्चा होती है, मैं नहीं जानता क्यों होती है। एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, वैद्य जो भस्म बनाता है वो अलग है, कंपनी जो भस्म बनाती है वो अलग है, और इंस्टीट्यूट में जो भस्म बनती है वो अलग। प्रैक्टिकल बात है ये, बड़ी 110% प्रैक्टिकल नंबर है। अब ये बात कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, क्योंकि इफेक्ट तीनों में मिलता है। इंस्टीट्यूट की बनी हुई जनरली पेशेंटों पे कम काम आती है, लेकिन अच्छा। जो वैद्य बनाता है वो डायरेक्ट काम आती है। जो हम लोग बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाती है, वो डायरेक्ट काम आती है। उसका डायरेक्ट हमको रिजल्ट मिलता है, डायरेक्ट हमको रिस्पॉन्स मिलता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है, डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। उनको दूसरे दिन कंप्लेंट आ जाती है कि साहब आपके इस प्रोडक्ट में ये कंप्लेंट है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वैद्य हो। लेकिन इंस्टीट्यूट में बनने वाली भस्मों का केवल एक थ्योरेटिकल पक्ष रहता है, और थ्योरेटिकल पक्ष में उसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। आप उसको शास्त्रीय विधि से बना सकते हैं, आप उसको मफल फर्नेस में डाल के जैसा टेम्परेचर चाहे बना सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इफेक्ट किस भस्म में दिखता है? जो प्राइवेट वैद्य बनाता है, या जो हम जैसी, जो हम तो एक्स हो गए, लेकिन हम जैसी कंपनियां बनाती थी, झंडू जैसी या डाबर जैसी। और आजकल एक तीसरी एक जनरेशन क्रिएट हो गई सर, क्योंकि बड़ी कंपनियां भस्मों को बनाने में हेडेक समझने लगी, इसलिए भस्मों के बनाने की कंपनियां जनरेट हो गई। सब कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में कई केवल बल्क मटेरियल भस्में सप्लाई करती हैं क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से, चाहे वो उमा हो, गंगा हो, ऐसी कई कंपनी है। और बड़ी बड़ी कंपनियां डाबर, वैद्यनाथ, झंडू सब इनसे ये भस्में लेते हैं। तो भस्मों की कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए यूं खत्म होनी चाहिए कि नंबर 1, 1000 फुट अबरक भस्म में देने वाला कोई मर्द अभी बचा नहीं। नंबर 1, बड़ी क्लियर भाषा में बोल रहा हूं, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वैद्य हो। झाजी ने बिल्कुल ठीक किया, मेरे ग्रैंडफादर बनाते बनाते एक्सपायर हो गए, हम समझ भी नहीं पाए सर। वो एक्सपायर हो गए, चले गए, उसके बाद वो राख की तरह काम आई। तो एक पीढ़ी बनाती थी 1000 फुट की भस्म को, और दूसरी पीढ़ी उसको यूज करने के मोड में आती थी। शाबाश। तो इतनी चीजों को आज ना इंडस्ट्री टॉलरेट कर सकती और ना अफोर्ड कर सकता कोई प्रज्ञान या पीयूष जैसे सिंगल वैद्य। उनको अपनी सुविधा के अनुसार स्टैंडर्ड्स पे आना चाहिए, निश्चंद्र होना चाहिए, वारितर होना चाहिए। जो शास्त्रों में लक्षण बताए हैं वो कंपनी भी देखती है, वो वैद्य भी देखता है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्ट रेपुटेशन इन्वॉल्व है। लेकिन इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन प्रैक्टिकल सैंपल बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उस सैंपल की फाइनल डेस्टिनेशन है स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड टू पुट इन द रैक, नॉट टू गिव टू द पेशेंट जनरली। अब जामनगर में है, बीएचयू में है, कहीं कहीं सुविधाएं हैं फार्मेसियों की, लेकिन हर इंस्टीट्यूट में सर नहीं है। तो इंस्टीट्यूट वाले, मैं क्षमा चाहता हूं, झाजी मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले जनरली थ्योरेटिकल बेस पे ज्यादा काउंट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट की साइकोलॉजी से सदानंद आए थे, एक हमारे रस तरंगिणी के लिखने वाले। वो रस तरंगिणी ने पूरे इंस्टीट्यूट, पूरा रस शास्त्र, पूरी एल्केमी खत्म कर दी इन द सेंस। पहली चीज उसने लिखी बड़ी क्लियर रस तरंगिणी ने कि ई मर्क द्वारा आया पारा 100% शुद्ध है। यू डोंट हैव टू प्रोसीड इट फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सब्लिमेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट मीन्स
That is the hint for the companies, manufacturer companies, and they have used that hint in very worst manner. And general big companies are using mercury directly without Shodhan, because Rastarangani has mentioned, and Rastarangani is in scheduled book, first schedule, so we have to follow that. Otherwise, in that Rastarangani also, they have written for 100 ports, 1000 ports, 10 ports, everything is written there. But the industry has taken one reference that mercury is pure. And Pawan ji, I just want to interrupt thoda sa ek sawal, because everybody is here, our senior people are here, and experienced people are here. Thoda sa use kare. Ek sawal aaya ji, hamari प्लेटफॉर्म में एफिकेसी की ऊपर चर्चा चल रहा, सो थोड़ा सा बताओ कि इंडस्ट्री वालों की जो प्रिपरेशन है उसके कुछ, इज देयर अ डिफरेंस इन एफिकेसी? आप तो बता दिया 3 टाइप का, एक तो है इंडस्ट्री वालों का, एक तो है व्हाटएवर यू सेड 3. अब इसमें एफिकेसी, इंडस्ट्री एंड पर्सनल फिजिशियन, हाँ जी, चलो अब इसमें एफिकेसी वाली बात, उसके ऊपर थोड़ा बताना जी, जो फिर जहाँ से आपको पकड़े सबसे बेस्ट एफिकेसी आएगी जो पर्सनल वैद्य बना रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी दुकान उठ जाएगी, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा तो वो मार भगा देंगे उसको. सेकंड बेस्ट बनाएगी कंपनी, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है. पुराने जमाने में गोबर के कंडे यूज होते थे, कहीं कहीं बोला जाता है कि दूध पापेश्वर अभी कर रहा है या दूसरी कंपनियां कर रही हैं, लेकिन जनरली हम सब बड़ी कंपनियां मफल फर्नेस में स्विच ओवर हो चुकी हैं. आज मफल फर्नेस का टाइम और गोबर के कंडों का टाइम, इसमें स्लाइट डिफरेंस है, बिकॉज कंपनी कैन नॉट प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर दैट incineration of the metal. पवन जी, सवाल ये है, is the efficacy comparable? Efficacy मतलब first efficacy personal made, second efficacy institutional made, industry made, and third efficacy institutional made. इसमें एक सवाल और, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे पवन जी ने सब आपका जितने भी मेटल हैं, नाग, बंग, यशद और क्या कहते हैं ताम्र, लौह, इन सब को हम लोगों ने कई लेवल पर स्टडी किया प्रैक्टिकली, और उसकी पूरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी देखने का प्रयास किया. तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी फार्मेसियां हैं पुरानी, they all are belonging from the वैद्य family. अब जहाँ आप जाएंगे, हर किसी का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो अगर नजदीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि इनका अलग मेथड है, उनका अलग मेथड है, अलग अलग मेथड से बना है. और सबसे मेन है कि अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने है, वो उस चिकित्सक के द्वारा, जिस चिकित्सक के द्वारा वो फार्मेसी शुरू की गई, झंडू भट्ट के द्वारा झंडू फार्मेसी, रामनारायण शर्मा जी के द्वारा बैद्यनाथ फार्मेसी या जुगल किशोर शर्मा जी के द्वारा, और इसी तरह से फिर वो शाह फैमिली के द्वारा ऊंझा की फार्मेसी, वैद्य फैमिली, और ये अपने यूज के लिए वो सारे के सारे. और जैसे शास्त्र में 10 विधियां दी हैं किसी भस्म को बनाने के लिए, उन्होंने उस 10 में से कुछ ऐसा आइडेंटिफाई कर रखा था कि दिस मेथड इज मोर एफिकेशियस इफ वी प्रिपेयर्ड भस्म बाय दिस मेथड, देन दिस विल बी मोर एफिकेशियस. ऐसा उनका अपना एक ऑब्जर्वेशन था, अनुभव था, और उसी को उन्होंने अपनी फार्मेसी में, और ऐसा नहीं कि वो शास्त्र में नहीं, वो शास्त्र भी कहता है, लेकिन उस 10 विधि में से एक विधि को आदमी चुन ले और पहचान ले कि ये ज्यादा एफिकेशियस है, और फिर उस तरह से बना करके उसका प्रयोग करता. तो दिक्कत यही है कि हम जो आज फॉलो कर रहे हैं वो सरल फॉलो कर रहे हैं, खास करके टीचिंग इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर कि आसानी से हम उसको प्रोड्यूस कर सकें. तब भी ऐसा माना जाता है कि मैं पहले भी कहा हूँ कि मटेरियल है तो उसका कुछ न कुछ प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी अपना एक्शन के रूप में दिखाएगा. तो अब
सवाल यही है कि अगर सही तरह से बना है, सही उसका पार्टिकल साइज है, सही तरह से वो हमारे सर्कुलेशन में जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से अपना इफेक्ट दिखाएगा। अगर निर्माण के लेवल पर सही नहीं बना पा रहे हैं तो कहना बहुत मुश्किल है उसके एक्शन के बारे में, बल्कि उसका जो दुष्प्रभाव है उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। आग के बारे में बहुत सतर्कता की जरूरत है। जितना हम उसको आसान समझते हैं वो बिल्कुल आसान भी नहीं है। और नाग का भस्म हमारे यहाँ 60 फुट नाग भस्म बनाया गया, और उसकी हर तरह से जो मतलब उसकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, उसकी क्या कहते हैं फार्माकोलॉजी होनी चाहिए, और फिर क्लिनिकल स्टडी होनी चाहिए, सब लोगों ने किया और प्रूव किया उसको। यहाँ अगर इस तरह से बनाते हैं, इतना फुट दे करके बनाते हैं, तो क्या कंपाउंड बनता है और फर्दर उसका एक्शन किस तरह का होता है, ये सब रसगुल्ले के बारे में भी अनेकों वर्क करके लोगों ने सब प्रूव किया, दिखाया क्या करना है। दूसरा और साहब आपका साहब आपकी माइक्रोफोन में थोड़ा है जी, आवाज नहीं जा रही है, अब आ गया जी थोड़ा सा। तो सवाल यही है कि चीजें जो है वो सही बनना चाहिए, और खास करके पुष्पधनवा में जो रस सिंदूर यूज किया गया है उसको विभिन्न गंधक जारित रस सिंदूर होना चाहिए। और फिर रस सिंदूर अगर बना है तो रस सिंदूर अकेले सिस्टमेटिक वर्क उसमें कम देखने को मिलता है, और बॉडी एज ए होल उसका एक्शन अधिक हम महसूस करते हैं। लेकिन जब हमें सीट ऑफ एक्शन और क्या करते हैं साइट ऑफ एक्शन अगर उसको तय करना है, तो भी जब तक हम किसी पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल से उसको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उसको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल सकता है। तो जैसे सालमली है, यष्टि मधु है, नागरवेल है, और क्या कहते हैं भावना के लिए, तो इन सब की जब हम प्रॉपर भावना, भान और धतूर, इन दो की भावना, तो भान और धतूर अलग से खाली अगर आप देखेंगे तो पुष्पधनवा का बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है वो भांग और धतूर में खाली दिख जाएगा, और पूरा पुष्पधनवा अगर है तो फिर क्या करना। तो सवाल ये है कि जितने भी प्रेजेंटेशन हुए बहुत ठीक है, लेकिन कोई जैसे क्लिनिकल वर्क किया हो, और क्लिनिकल वर्क करके प्रैक्टिस के लेवल पर भी लोगों ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ डाटा कि पर्टिकुलर एक्शन कितना दिखाता है, इस तरह का डाटा कुछ आना चाहिए था। तो जो भी सभाएं हैं तो इस तरह का डाटा सामने नहीं देखने को मिला है। तो यदि कहीं इस पर लोगों ने काम किया हो कुछ, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में कि साइंटिफिकली हम पुष्पधनवा को कितना इफेक्टिव, और पर्टिकुलरली वाजीकरण की दृष्टि से, और वाजीकरण में बहुत सारी चीजें विचार में मैडम ने एकदम इतना डिटेल हमारे सामने रखा। तो सवाल यही है कि इन चीजों को एक एक्शन को हम एस्टैब्लिश करें क्लिनिकल ट्रायल करके, या फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल मॉडल लेकर के उसको हम ट्राई करें, तय करके सामने रखें, तो दैट विल बी मोर। थैंक यू जय साहब, थैंक यू जी। आपके पता नहीं आज आपके टेलीफोन से पता नहीं थोड़ा सा वो क्रैकलिंग आवाज आ रहा है, तो वी आर apologize to all our people joining online कि जय साहब की टेलीफोन से थोड़ा सा आवाज नहीं जा। सॉरी अग्निहोत्री जी, चले आगे बढ़े सर। हाँ थैंक यू जी। हमारे साथ है पीयूष जी, आई डोंट नो पीयूष जी नमस्कार जी। पीयूष जी आपसे थोड़ा सुने आज की जो प्रेजेंटेशंस के ऊपर। पीयूष जी नमस्कार। इफ पीयूष जी इज नॉट एबल, पीयूष जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। हाँ पीयूष जी, आज ये जो इसमें जो वी हैड वेरी क्लियर प्रेजेंटेशंस आपकी तरफ से और पारुल जी की तरफ से बहुत शानदार, और प्रज्ञा से एक चीज, इट इज अ वेरी
नोटिसेबल थिंग कि आज की तीनों स्पीकर की पहली नाम पी से शुरू हो रहा। अब पवन जी ने पता नहीं कैसे किया, बट दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। आज की औषधि का नाम भी पी से शुरू हो रहा है, पुष्पधनवा रस। अगर आप एनालिटिकल है तो हम आपके साथी हैं। आप तो आपका एक एक कदम देखते रहते हैं, आप कहाँ बढ़ेंगे, अब तुरंत उसको कैच करेंगे। आज 3 नहीं, आज 4 है। ये पता नहीं पवन जी ने कैसे किया। पवन पी भी पवन भी पी से ही है। पवन जी हमारे, वही मैं कह रहा था, पवन जी 5 पी हो गए। पीयूष जी, हमारी तरफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वी हैव हर्ड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, जहाँ साहब ने बताया जो चीज, वी हैव हर्ड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स कि आप लोग क्लिनिशियंस आर द एक्सपर्ट्स बिकॉज यू हैव अ कॉन्फिडेंस, you are using aushadhis that you know well, you are using it on persons based on your experience, and you are getting outcomes. That is the proof that something is happening. ठीक है ना जी? The difficulty is, there are 3 or 4 difficulties. एक difficulty है, पूरा दुनिया में फैल गया कि रसा औषधि इस खतरनाक चीज, मार देगा ये। ठीक है ना जी? अब पब्लिक परसेप्शन वहां तक पहुंच गया। अब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, जहाँ साहब तो है हमारे साथ, बट द गवर्नमेंट इज नॉट एनकरेजिंग अ डीपर स्टडी ऑफ रस औषधि, रस शास्त्र। जहां भी देखो थोड़ा डर गया लोग, पता नहीं क्यों। So clinicians are doing excellent work, treating very complicated cases, using their skill and getting fantastic results. वहाँ कोई toxicity है ही नहीं, वहाँ कुछ, there are no difficulties, they are getting excellent results. अब the most important thing, तो हिंदुस्तान ने पकड़ लिया पूरा दुनिया की global center for traditional medicine करके, and Rasa Shastra is a very important aspect of this because you can use small amount and get fantastic results. अब there is a tension here. The tension needs to be resolved. अब इसको कैसे करें? Do you see a tension? The tension is कि you are a clinician, you are getting results, or the common man is benefited Hindustan में, और पूरा दुनिया में फैल गया कि रसा औषधि is a poison, और हमारी जो इंडस्ट्री है, there is a different standard. Academia में कुछ और है standard, कुछ और है वेद लोगों की standards. अब जहाँ साहब ने थोड़ा बताया उसके बारे में, all the big houses are already run by Ved families. They have hundreds of years of history. इसमें हमारी तरफ से जब देखें तो थोड़ा सा वो टेंशन आ रहा है, वो स्मूथनेस नहीं आ रहा, जो इंटरैक्शन जो होनी है, there is a tension there कहीं ना कहीं. इसको कैसे डिफ्यूज करें? This is, today we are talking about a magical formulation that is helping a lot of people. इसकी वो टेंशन को कैसे डिसॉल्व करेंगे? So थोड़ा सा 1-2 बैकग्राउंड देके मैं बोलना चाहता था. See, कुछ देर पहले जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे, and then Pawan ji was replying regarding the real problems, मैं सोचा कि how is it possible? क्योंकि पवन जी कैसे इतना डीपली इसको समझ सकते हैं. I was shocked. Actually मैं सच बताऊं तो बड़ा करके नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं इतना हर समय पेशेंट में एंगेज रहता हूं कि मैं सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड नहीं करता. कि सिर्फ उनका कॉल है, मैं उसमें आ जाता हूं. अभी भी मैं वो पेशेंट चल रहे थे लगातार, जब आप लोग संग चल रहा था तो मैं बस साउंड थोड़ा स्लो करके रखा था. सो इट इज स्टिल गोइंग ऑन. प्रॉब्लम क्या होती है, मैं एक मेट्रो सिटी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो ऐसा भी नहीं मैं कोई गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, लोग आ रहे हैं दवा खाएंगे ठीक होंगे, उनको सिर्फ उनसे मतलब है. नो, 90% of my patients, either they are billionaire or they are well qualified. Almost 500 to 600 IAS IPS officers are my patient, including the judges of different cities, of different states. So all the intellectual persons are my patient. So definitely क्या होता है कि रिजल्ट देखने के बाद they all have questions. ये बहुत फेस करना पड़ता है हर दिन. इवन इतना नाम होने के बाद भी हर दिन वो क्वेश्चन फेस करना पड़ता है. Where I can tell you one thing,
जो एक कॉमन लोगों में, इसलिए मैं हर जगह कॉमन लोगों में मैं सेमिनार करता हूँ। मैं ये इस तरह के सेमिनार में सिर्फ आप लोगों के संग आ रहा हूँ, बट मैं हर महीने कॉमन लोगों में घुस के सेमिनार करता हूँ, है ना, और उनको आयुर्वेदा और ये हेवी मेटल्स एंड इसके उसके बारे में अवेयर कराता हूँ। तो मैं जस्ट एक छोटा एक्सपीरियंस बताता हूं कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। कंप्लीटली डिसअग्री। अगर आपकी, मैं जैसे बताया था कि जो लोग सीक्रेट करते हैं, मैं 2 एग्जांपल देता हूं, इट विल माइंड ब्लोइंग। ठीक है, आयुर्वेद में एक जगह मेंशन किया हुआ है मेदो रोग में, मेदो रोग मतलब ओबेसिटी, वहां 2 दवाइयां आती हैं, वडवाग्नि रस एंड वडवाग्नि लॉ। मैं सबके लिए बोल रहा हूं ताकि सब लोग सुन लें। वडवाग्नि रस एंड वडवाग्नि लॉ। एज अ क्लिनिशियन मेरे पास राइट नाउ मिनिमम सिर्फ कैलकाटा में 5 लाख डायबिटीज के पेशेंट हैं और मिनिमम 5.5 से 6 लाख कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं राइट नाउ। मैं पहले का काउंट नहीं कर रहा। इनकी डेटा मैं दे रहा हूं आपको। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल, सोचिए, सी द ब्यूटी, ये समझना है, यही ये गेम पूरा। अगर किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल हाई है, वडवाग्नि रस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। आप आज दोगे, विद इन 2 days गेट योर ब्लड टेस्ट डन, all the cholesterol level will be absolutely under control within 2 days. No modern medicine or statin can do all these things. Similarly, see the magic. When the triglyceride is high along with VLDL, Vadavagni rus will not do anything. It is Vadavagni lauha which will do the magic. क्योंकि एक दवा है जो लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है और एक दवा है जो पैंक्रियास के थ्रू लीवर को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। एंड विद इन 2 days, I have example, one person very known to the Kolkata people, very big name, मैं नाम नहीं बता रहा, his triglyceride level was 1300. I think you are getting me? हाँ जी, हाँ जी। 1300, sir. I have records, not 1%. I have records of 6 to 7%. 1300 triglyceride. He was taking 3 medicines of allopathic. Still, his triglyceride was 900. I have given 2 medicines only and challenged the person because he was very close to me. So he will take challenge as a very normal familiar thing. And I told him, just check your cholesterol level within 3 days. And they did it really within 3 days. मैं सोचा कि वो लोग मजाक में लेंगे, but they did it. And the result was absolutely under control, 150 triglyceride. And the medicine name was Vadavagni Lauha with Abhayadi Quat. Okay, Abhayadi Quat is a medicine which we used to do. There is a company, Punarnava, they used to prepare the single herbs extract in food pack form. Okay, so they prepare Abhayadi Quat for pancreas, and the level was within 153 days. So the thing is this: we should diagnose the case according to Ayurvedic point of view, not from the allopathic point of view. With confidence, I'm saying 95% of disease can be managed easily, which is incurable in case of allopathy. Whether this is acute or chronic, no problem. So coming to the solution, we can do 2 things together. Number 1, we should at least make aware the people of our nation with the awareness seminars with the common people to know the real thing. Because why I'm telling this to you, as I told you, I have 5 lakhs patients currently, and I'm practicing since last 10 years. Everyone, to all of them, I used to give Rasa Aushadhi for diabetes because कोई भी patient मेरे पास normal diabetes लेके नहीं आता. When I was a student, I remember in a seminar, one of the great teacher was saying, don't give Ayurvedic medicine only when the sugar level is more than 200. You won't believe, I have thousands of records. No patient comes to me with 200. Everyone used to come with the insulin dependent with 4 to 5 allopathic tablets with uncontrolled diabetes level more than 300, including insulin. And everyone get rid of it within 1 to 2 days with absolute normalcy. Fine. लोग सोचते हैं कहां से हो गया भाई, जरूर something they have mixed. I challenge the doctors, because here plenty of allopathic doctors knows my name just by the prescriptions.
they don't know my face. तो they raised question, जरूर कुछ एलोपैथिक मिलाया होगा. तो I have a simple answer, भाई आपके पास तो इंसुलिन है, सारे टैबलेट्स हैं, आपने क्यों नहीं कम कर दिया? अगर मैं एलोपैथिक मिला के कम किया है तो there has to be the intellectual question, what is the special thing inside it? This is pial sal. If you will put 1 drop of pial sal on your tongue, you will get the hypoglycemia. Fine. So these are the beauty. So what I wanted to tell that I am giving Rasa Ayush to the sugar patient for last 10 years. And I used to do check their blood test for heavy metals. And no one gets any kind of heavy metal deposition in their blood ever since last 10 years. Even after taking 4 to 5 medicines. But this is a clinical record. This is a clinical record. Piyushi, let me stop you there. I'm going to share my screen thoda sa. I'm happy I challenged you. Challenge nahi, I am happy I asked you this question. Thoda sa elaborate karke jo humne pucha sawal. Aur aapne jo jawab diya, it was so fascinating ki Agnihotri ji sat up there ki kya keh raha thi. Theek hai na ji? Ab Jha Sahab wants to talk, but before Jha Sahab comes, I just want to put this screen थोड़ा देखना जी. ये जो screen में जो आएगा, if we are having such fantastic results, ठीक है ना जी? इतनी कमाल की result आ रहा, जो आपने जो बताया, we trust, we are listening कि आपके जो पूरा whatever you are saying, you are the clinician, you are using the dawai, you are getting the result. So there is no confusion. You are the mastermind. ये देखो, ये यहाँ पे screen की left में क्या दिखा है? This is the market value for statin. ठीक है ना जी? Statin की this is what is given for controlling cholesterol. यहाँ पे पूरा दुनिया में इतने they have captured the entire market. Uska value have 15 billion US dollar, predicted to increase to $20 billion. ठीक है ना जी? और आपने जो बताया, you have given us examples कि छोटी सी दवाई से कमाल की result जो आपने बताया. अब ठीक है ना जी? अब हमारी तरफ से एक सवाल है कि if we are getting this kind of a response, why cannot we grow the 2 formulations? जो दो चीज जो आपने जो बताया, एक तो है ये लहुकल्पा, और दूसरी चीज जो बताया कि रसा एंड बड़वागी लौह. तो हमारी तरफ से एक सवाल है जी, एक छोटी सी सवाल, फिर we will listen from Jha Sahab. Why cannot the government of West Bengal, आप तो गवर्नर साहब से मिलते रहते हो, why cannot the government of West Bengal, vice president. So why cannot we put together a consortium to take the early results, जो आपके पास जो result आया, उसको लेके थोड़ा scale up करके, why cannot we do a global approach for this new treatment for management of hyperlipidemia? बिल्कुल सही है, मेरा ड्रीम भी यही है, बट मेरे संग प्रॉब्लम ये है. हाँ जी पीयूष जी, आपका कट गया, आवाज कट गया जी आपका. हाँ, बिल्कुल सही है, मेरा ड्रीम भी वही है जो आप बता रहे थे सर, कि why cannot we make it global? The problem is this. See, I am 36 years old, okay, and belonging to a very simple family. तो मुझे खुद से सब कुछ grown up करना था. तो बना बनाया कुछ नहीं मिला मुझे. Now I have established the things. तो मैंने फिर record, क्योंकि इतना huge number of pressure of patient, we cannot handle everything taking record alone. अकेला रिकॉर्ड भी करूं, सब कुछ करूं, पॉसिबल नहीं था. मैं रात को 1:30 बजे तक देखना पड़ता है, मजबूरी है मुझे. लोग कहते हैं वेरी गुड टू हियर द आयुर्वेदिक थ्योरी की वैद्य को वो जीवन अपनाना चाहिए, दिनचर्या एंड ऋतुचर्या. इट्स वेरी गुड टू लिसन, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग व्हेन द पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन सच अ फॉर्म. तो वो बोलना, वो छोड़ देना इज वेरी मुश्किल.
पीयूष जी, एक मिनट आपने जो बताया बात, that it is you are only 36 years young, you are very young, you have at least 40, 50, 60 years ahead of you, I hope. अब I just want 2 words from अग्निहोत्री जी कि अग्निहोत्री जी जो सुने आपसे उसके बारे में थोड़ा सा फिर सुने झा साहब से। अग्निहोत्री जी प्रणाम जी। नमस्कार सर, आपने थैंक यू जो वेरी मच। नहीं, आपकी जो सर इंटरेस्ट प्रणाम, जो सर आपको मेरा प्रणाम है। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। डॉक्टर साहब ये क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रहा पीयूष जी का, थोड़ा सा सवाल आपसे लें जी। हाँ हाँ, नहीं, आई वुड लाइक टू बी इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, दैट टू इन अ क्रॉस क्वेश्चन मैनर। पीयूष जी का जो भी कार्य है, अगर ये इनके ही कार्य क्षेत्र या इनकी क्लिनिक तक रहेगा और डॉक्टर साहब आपका आवाज थोड़ा, अग्निहोत्री जी आपका आवाज थोड़ा कम हो गया। आ रही आवाज? तो आ रही? हाँ जी, आ गया। तो इनका अपना कार्य जो इनकी क्लिनिक तक रहेगा और इनके ही कार्य क्षेत्र में रहेगा, तो इनका नेम एंड फेम हो रहा है, मनी भी हो रहा होगा, लेकिन सफरिंग ह्यूमैनिटी जब उन्होंने कहा तो एक बार तो मुझे चिंता हो गई कि इनके पास 5 लाख पेशेंट तो अभी करीब देख चुके हैं और लगभग 500 इनके IAS, IPS और एलीट क्लास के पेशेंट्स हैं। तो मुझे डर लग गया क्या बंगाल में सब बीमारी है? ये नहीं, ये अलग बात है कि उनके पास पॉपुलेशन भी बहुत है। उनका अपना मेरे ख्याल से कैलकाटा की ही पॉपुलेशन शायद 1 करोड़ है, प्लस हो गई होगी अब तो अमेजिंग लगा कि इतना क्विक रिस्पांस, इतने तीसरे दिन का। इसको चैलेंजिंग मत लीजिए, इसको आप धन्वंतरी की आशीर्वाद लीजिए, आयुर्वेद का आशीर्वाद आपके ऊपर है। जो आप जिस चीज को छू रहे हैं उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। बात आई वर्ल्ड के साइंटिस्ट और वर्ल्ड के जो दूसरे कंटेम्परेरी मेडिसिन हैं इस फील्ड में, तो वो कुछ अपना काम दे रही हैं और अपना मार्केट उठा रही हैं, करोड़ों करोड़ बिलियंस में काम कर रही हैं। तो वहां पर आपका एक नॉलेज, एक बूंद समुद्र में कितना काम करेगा, इसके लिए आपको बहुत बड़ी चीज चाहिए। बहुत बेहतर होगा कि जो कंपनी आपको बना के दे रही है उस पर आप अपनी एफर्ट्स को पेटेंट कराइए, नहीं तो चीजें हाथ बेहाथ हो जाएंगी। ये जो डर होता है सबसे बड़ा हमारा वैद्य का, वो बेचारा खुद तो बना ही रहा, लेकिन अपने नॉलेज और एक्सपर्टाइज के बदौलत उसने उन पेशेंट पर ट्रायल लेके पॉजिटिव रिजल्ट ले लिया है, जिस पर उसको फेम मिल रहा है। ऐसे में लोग वो उसका, चूंकि इनका अपना फार्मूला नहीं, कंपनी बना रही है, नहीं तो फार्मूला खरीद सकते हैं। तो आपने ये करना, जैसे हम आपको बताएं TGL, जैसे आपने कहा मेरा इतना फास्ट नहीं है, TGL में जो छोटे वाले बैगन आते हैं ना, उन छोटे वाले बैगन के 3 डंठल, उसका क्राउन, उसको ले लेते हैं, उसमें जितना ही पल्प जुड़ा रहा है उतना ठीक है, और एक छोटी सी कटोरी में उसको जहां तक वो डिप हो जाए डुबो के उसको बॉईल करते हैं, और उसको मैश करके जो उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड डिकॉक्शन बना, उसको हम लोग 21 डेज ऑन एम्प्टी स्टमक देते हैं। बाद बाकी जो पल्प है बैगन का, वो चाहे कोई भी खाए, उसके 21 दिन में मुझे TGL के +400 पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तभी मेरे को एकदम अमेज्ड हो गया मैं कि वो तो उसमें रस भी नहीं है, केवल बैगन के क्राउन और डंठल उसका जो उसका असर था। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी है, रस औषधि, और आपने कैटेगोरिकली कह दिया लॉ है, तो वो उधर काम करेगा। इस पर कोलेस्ट्रॉल डिसलिप्टी है, डिसलिप्टी में वर्क करेगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स पे काम करेगा, और रस जो है तो वो हमारा कोलेस्ट्रॉल पे काम करेगा। वैसे जो बड़वानल है हमारी, तो जाटराग्नि, बड़वानल, दावानल जो बताई गई है, तो वो नाम बहुत अच्छा, बहुत ही अपीलिंग नाम है। मेरी सिर्फ सबमिशन इसमें इतनी ही है कि क्या कुछ ऐसा है, आपने पब्लिकेशन भी कराई होगा, हालांकि आपका सिंगल मैन शो है, तो कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल में एक बुकलेट टाइप बनवा लिया बजाय पब्लिश होके अपनी खुद किसी भी पब्लिशर से मिला के, जिसको आप जैसे आप कंट्री साइड में अपनी कॉन्फ्रेंसिंग करने जाते हैं, वहां उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और आपके वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है, मतलब वैसे जो बोर्ड होगा, या जो और DM वगैरह हैं, या जो और हमारे ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज है, उन तक पहुंचाइए, जिससे कि आपका वर्क कोई आपसे छीन ना पाए, पब्लिक में पकड़ आपके अपने वर्क पर रहे। और जनता ओबेसिटी इतनी ज्यादा, क्योंकि वो फास्ट फूड खाते हैं, ओबेसिटी तो बहुत हो रही है, और ये जो कहना उसका इतना ज्यादा काम हो चुका है कि वंस आप यू हैव स्टार्टेड स्टैंडिंग, यू हैव टू कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। तो वहां आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और रही बात 36 साल की, तेजशाम नवया समीक्षिते,
जो तेजस्वी होते हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती है। हमारे शंकराचार्य जी तो 39 साल में सब कर गए, जीवन भर के लिए हमारे द्वैत और अद्वैत बता के समझा गए। विवेकानंद जी भी उतने में निकल लिए, हेनरी ग्रे भी उतने में निकल लिए, अंडर 40s। तो उम्र पर मत जाइए, तेजसाम न वयः समीक्षते, इस विचारधारा को रखिए, आप बहुत आगे बढ़े। हम लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं और आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, इस प्लेटफॉर्म को छोटा मत समझिए। डॉक्टर पवन जी का आपका प्रेम है, अच्छी बात है, वो भी 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन आप इससे जुड़े रहिए कि आपके इतने अतुल्य, आपका अतुल्य जो कंट्रीब्यूशन है ये जनता को बहुत दूर तक आपको लाभ दिलवाएगा, आपको यश मिलेगा। अभी फिलहाल मेरा एज ए क्रॉस क्वेश्चनिंग में यही हमारा इतना सबमिशन है। थैंक यू। ओवर टू अग्निहोत्री जी, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा हाँ जी, जानना चाहूंगा कि ये जितने भी एक्शंस हैं जो इनको मिले हैं, वो या तो मतलब एक डाटा जनरेट होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, अदरवाइज ये किसी कहानी की तरह से लोग इसको लेंगे। और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कुछ इस तरह का पब्लिकेशन नहीं होता है, डाटा जनरेट नहीं होगा, तो ऐसे लोग उसको पता नहीं कहाँ तक सही लेंगे। और जहाँ तक भस्मों के, खास करके मेटलिक भस्मों के या मटेरियल प्रिपरेशंस के, डॉक्टर साहब आपका आवाज कट रहा जी थोड़ा सा। टॉक्सिसिटी का जहाँ तक प्रश्न है, तो हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत लंबा काम किया है, और इस बात को हम लोगों ने बराबर प्रूफ किया कि दे आर नॉट टॉक्सिक, जिसको हम टॉक्सिक कह रहे हैं। प्रॉपरली फाइनल प्रोडक्ट हमारा होता है, चाहे रस्सी हो, चाहे मकरंद भस्म हो, चाहे नाग भस्म हो, चाहे भंग भस्म हो, ताम्र भस्म हो, ये सब जितने भी भस्म है जो हमने बना लिया भस्म, और इवन नेकेड आई ऑब्जर्वेशन जो हमारी प्राचीन एक ट्रेडिशनल परंपरा है भस्मों को तय करने का, आगे भी हमने उसका किया। सारे जितने भी नए हमारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं उस पर भी किया, लेकिन जो हमारे पुराने हैं उतने पर हमने उसको एसेस करके और देखा कि कहीं कोई मतलब डैमेजिंग इफेक्ट नहीं कर रहा है, बाहर चाहे जितना भी उल्टा सीधा प्रचारित। तो इन्होंने जो भी किया है वो चाहता है इसका डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिकेशन और कोई डाटा थोड़ा सा जनरेट करना चाहता है। तो जो भी बातें आ रही हैं तो बहुत ज्यादा फल मिलेगा, और उसको फिर आती होकर के वर्ल्ड साइंटिस्ट है उसको मानने के लिए पूरा एक मेथोडिकली कि हमारा प्रोटोकॉल क्या है और कैसे बना हुआ है मेडिसिन, और हमने कैसे यूज किया है। हमने से एक होता है कि हमने प्रिस्क्राइब कर दिया पेशेंट को देख करके, दूसरा विधिवत जैसे पहले करना, शोधन करने के बाद फिर मेडिसिन का यूज करना। तो अग्निहोत्री जी, डॉक्टर साहब आपका आवाज, हाँ जी मैं खत्म करता हूँ यही, मेरी बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। अब आ गई कभी आ जाती है, नहीं आ रही। तो मैं यही कहना चाहूंगा जी हाँ, विधिवत जो सारी चीजें हुई और इस तरह का एक्शन जो है वो वाकई मतलब कहीं से भी मतलब इसको कम नहीं कहा जा सकता है। बहुत बड़ा एक्शन है, और इतना एक्शन अगर हमारे आयुर्वेद के फिजिशियंस जितने भी हमारे बैठे हुए बाहर अगर लेने लगे इस तरह का एक्शन, तो क्या कहना है, कमाल की। तो एकदम उड़ेगा। पीयूष जी, आपने जो आज जो बताया हमारे सामने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दो आपने बताया कि यू विल गिव 2 एग्जांपल्स एंड यू हैव गिवन इट, और जा साहब भी है हमारे मोस्ट सीनियर शास्त्र पर्सन हियर। अब हमारी तरफ से पीयूष जी, वी अंडरस्टैंड कि यू आर वर्किंग अलोन, एंड जा साहब ने जो बताया, वी मस्ट स्टार्ट टू डॉक्यूमेंट दिस। हो सकता है कि कलकत्ता से जो हमारी पवन जी की कांटेक्ट से या जयेश जी की कांटेक्ट से, हमारी कॉलेज से 1-2 बच्चों को ले आके आपके साथ बिठा के वी विल शो यू हाउ टू कैप्चर दिस डेटा। आपके बिल्कुल पीछे नजदीक बैठ के दे विल कैप्चर द पॉइंट्स और डॉक्यूमेंट द रिजल्ट्स। ठीक है ना जी? कि कोई MD थीसिस या कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट या कुछ ना कुछ करके वी विल कैप्चर दिस डेटा थोड़ा सा।
नहीं, आयुर्वेद का बहुत बड़ा कल्याण होगा इससे। बिल्कुल जी, बहुत सीरियसली इसको मान करके चलना चाहिए। डॉक्टर और ये साहब बहुत आपसे आवश्यक, भी, बहुत आवश्यक। आप डॉक्टर साहब BHU से भी आपकी तरफ से भी लेंगे जी थोड़ा मदद इसके लिए, थोड़ा सा कैसे स्ट्रक्चर कैसे करने हैं इसका, क्योंकि जरूर जरूर। क्योंकि this is very important. Maybe Piyush ji, it is very important to give this idea to the first for all of us. आपने you have shared it with us. We are all very glad कि आप आए आज हमारे साथ और you have delivered, और बिल्कुल अंत में आपने ये जो example जो दिया, this is so exciting. ठीक है ना जी? And I have pointed you to the global markets. और सर WHO वालों को भी कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, सुनने को बहुत कुछ मिल जाएगा उनको। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस मस्ट, हमारी तरफ से ये है जी, जो WHO वालों की एक है एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट करके, अब उसमें आनी चाहिए आपके जो दवाई जो बता रहे एसेंशियल पूरा दुनिया के लिए, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स जो पवन जी है हमारे साथ विल बी डन इन वेस्ट बंगाल। क्यों नहीं? क्यों डॉक्टर साहब, क्यों अग्निहोत्री जी, क्यों नहीं? बस यही है कि इनसे कोई छीन ना ले, क्योंकि हाँ। मार्केट खराब होगा मॉडर्न मेडिसिन वालों का। जब उनका मार्केट खराब होगा, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट खराब होगा, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। बिल्कुल, तो इनको बिल्कुल, चाहिए कि अभी ये मतलब टेक विद केयर वाली है, प्रिकॉशन के साथ इनको चलना होगा। स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप मजबूत हो जाए तब दूसरा आगे बढ़ाएं। बट योर सजेशन फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द UG and PG scholars for assessing him and for his data filter help, that will be wonderful. उससे बहुत लाभ मिल जाएगा. Once it is documented at initial level itself, it will go to a long way. बिल्कुल जी। So we are, पीयूष जी, हमारी सारे I am particularly जाज साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, अग्निहोत्री जी से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पारुल जी, the people who are not here with us, सबसे we are grateful कि you have come today. Thank you for being with us today and sharing your thoughts. Number 2, अब बिल्कुल एंड में जो आपने जो बताया चीज is very very important. और अग्निहोत्री जी, we will all discuss together. We will think about something. जहाँ साहब, अग्निहोत्री जी, पवन जी, everybody will come together. थोड़ा सा डिस्कस करके we will come to you to see how to थोड़ा सा इसको डेटा कैसे कलेक्ट करें जो आपके पास है, उसमें थोड़ा सा सिस्टमैटिक। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ डेटा कलेक्ट करने का, मैंने शुरू किया है क्योंकि CKD पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। CKD पे हाँ, तो मैं सबका डेटा कलेक्ट करना शुरू किया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं अब, they are sitting along with me. नमस्कार, आपका नाम, शुभ नाम? Myself, वैद्य सौरभ पराशर। आप you are MD BAMS क्या है जी आप? I am BAMS from Kolkata only. Where did you study? From JB Roy State Ayurvedic Medical College. अरे डॉक्टर वैद्य सौरभ पराशर, do you remember me? Once you were here 3 years back in Haridwar tour with your bus. Remember, I am that one, that Agnihotri. Yes sir, yes sir. You had given us that motivation. As soon as you told Parashar, I got it. You were standing with your colleagues and friends outside your bus that was near to Premnagar Pool. I was returning from morning walk. I just found that this is a Ayurvedic college tour from West Bengal. I just stopped myself, located that is there any person to whom I can talk. I located you, I talked to you, and you gave me. We had been to a longer period with the this WhatsApp and all discussion. So you have completed your graduation. Now you are assisting. You are assisting with our great Piyush ji. It's a wonderful surprise to me. Professor Madan ji, dekhe how wonderful it is. He casually got me on my morning walk return. I just interrupted him. The whole bus was there. Rather, 2 buses were there. Wow, thank you very much. My all greetings to you. Go ahead, please. Yes, sir. I was just thinking that this is Dhanvantari's plan. How this small world of Ayurveda, and we all will connect eventually. You see, this was little bit my benediction that you reached this height. I can say this. I am not shy to take the credit of that morning's our discussion. Correct. बहुत बढ़िया. We are very happy that you have come on the screen and you are discussing here. So Piyush ji, और कौन है आपके साथ आज?
और एक स्टूडेंट बाहर पेशेंट मैनेज कर रहा है, रोक के रखा है सबको संभालने के लिए कि भाई वेट inside there is going on something. In fact, we have some of the patients who have also come inside and they also want to hear the seminar. बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए। वाह, सबको बुला लीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे को तो पूरी बस मिल गई थी, पूरी बस के बंदे मिले थे। जो भी है ना, सबको बुला लीजिए। भाई पीयूष जी, आपने हमारे लड़के को कैसे पकड़ लिया? सॉरी सर, ये तो आपने मेरे लड़के को कैसे पकड़ लिया? ये तो मेरा बंदा है। ये तो भगवान धन्वंतरी का कृपा है। अफसोस ये है कि इसके पहले बहुत लोग आए, वो सब सीखते हैं और चले जाते हैं, कोई रहता नहीं है, सब चले जाते हैं। ये इसे मैंने पहचाना था। पीयूष जी, ये सौरभ पाराशर है तो। हाँ सौरभ पाराशर, इसको मैंने पहचाना था भाई। शाबाश शाबाश। सर मैं सबके पास थोड़ा बड़ा हुआ हूँ सर, यहाँ पे सब मेरे गुरु। पवन शर्मा सर, जयेश भैया। इसके विषय में एक और स्पेशल बात है सर, इसके फादर के और भाई का बड़ा अच्छा बिजनेस है। अच्छा, लेकिन फिर भी लड़के की आयुर्वेद में लगन है। शाबाश बेटा, लगे रहो। पवन जी, ये देखो, आपकी कलकत्ता में पूरा जेम्स पड़ा है। दिस इज फॉर द होल वर्ल्ड। इनके साथ चलें जी थोड़ा, कि जरूर अगले पीढ़ी निकल रहा है, उनके साथ चलें अब आगे। लेट अस सी हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। जहाँ साहब भी है हमारे साथ। वी आर सो लकी टुडे कि the discussion is matured into such a state. So Piyush ji, बहुत बहुत धन्यवाद। Our other two speakers, हमारे तो टाइम हो गया पवन जी, 9 बजे, 9 तो बज गया। और thanks to Piyush ji, बहुत बहुत धन्यवाद जी for elaborating particularly this last point जो आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। And thank you for bringing all your team into the platform. This is how it should be, because the world must know that there is Ayurveda, there is Rasa Shastra, there are incredible outcomes coming in the field that is not being documented, but people are benefiting. And that is what we want. Baki is easy. Documenting is, yes, it is challenging, but it's relatively easy. But what is missing is the confidence of the Vaidya. The one who uses Rasa Aushadhis with confidence. That is, for me, this is like the warrior, you know, the extreme. That means they have so much confidence in what they are doing that they can use it and get fantastic results. So, bahut bahut dhanyawad. And I'm saying this in front of our most respected senior Guruji here, Jha Sahab, just to say that there are people in the country who are taking great care of Rasa. They are getting fantastic results, and this needs to be documented. We will document it, and we will take this forward. So, Piyush ji, thank you very much. Parul ji has left us, so we want to thank Parul ji for giving us the wide perspective, both very wide canvas. She has given us so many exciting things. Or we want to thank Pragya ji. Pragya ji might not, I don't think he's here with us. Tejinder ji is here. I'll take one last word from Tejinder ji. Namaskar. So first of all, big thanks to all the speakers. Tejinder ji, namaskar. Hello sir, pranam. Sir, namaskar ji, thank you for joining us from Dehradun. Kaise ho? Thank you sir, sir अच्छे। आज सुने थोड़ा पीयूष जी की बात। हाँ जी सर, काफी मोटिवेटिंग था सर। ये आगे क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए, खासकर औषधियों में इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके लिए ये काफी मोटिवेटिंग है आगे हमें प्रैक्टिस करने के लिए कि शाबाश। सो तेजिंदर जी, इसमें क्या है कि दिस पीयूष जी इज एन एग्जांपल कि कैसे होना है practitioner के पास there is no time for anything else. That is all. They are committed to the patient, 100%. But when we get a few minutes to discuss the results, then we hear from their experience. So the practitioner is the ultimate, because they are the interface between the theory and the practice. And that Vaidya is important. So Piyush ji has given us today, and we are grateful, Tejinder ji, you have joined us, and we are grateful that
Jasab is listening to us. We will take final words from Jasab and then I give the floor back to Pavanji. Tejinder ji, aapki taraf se ek hi nivedan hai ki bring your class fellows, MD student, MS students to this platform. Kahan hai hamare ladke ladkiyan? Sure, sir. I will share the link and I will tell other people. Kyun nahi aa raha hamare platform mein? And they are missing all these wonderful stories and experience. To have senior person like Jasab with us is a privilege, you know. True, sir. True, sir. It's a big platform. And this is also a classroom, you know, open learning. Yeah. Of course, sir. Of course. So please encourage your students to join us, ask the questions, share their experience, share their comments. Man mein kya chal raha? Tell us, because our vision is a global Ayurveda. ठीक है ना जी? आज पीयूष जी ने जो बताया बात, it is a global issue. Multiple $20 billion बना रहे लोग बाग इस problem के ऊपर. And why not? Why can't Ayurveda also be there? Tejinder ji, thank you very much. Jasab से सुन के फिर पवन जी को दे दें. Thank you. जोड़ते रहिए जी हमारी program platform में. हाँ जी sir, thank you so much. Thank you Tejinder ji. Jasab pranam ji. Jasab. Jasab pranam. If Jasab is not able to join us, Jasab namaskar ji. Then I return the floor to Pavanji. Pavanji, namaskar. If Pavanji is not there, then I take the liberty of requesting Agnihotri. Pavanji, ji, aa gaya ji. जी हाँ सर, अग्निहोत्री सर. Agnihotri ji. Pavanji, आज की जो चर्चा जो हुआ, it is so fantastic. Thank you for bringing so many people. Jasab aa gaya. Jasab pranam ji. Jasab pranam ji. डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सुन के फिर अग्निहोत्री से सुने जी. Jasab नमस्कार. हाँ जी नमस्कार. आपसे थोड़ा सुने जी आज की जो चर्चा के ऊपर. Last words. पीयूष जी ने जो बताया जी उसके बारे में अगर कुछ आपकी तरफ से. हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे छात्रों में कॉन्फिडेंस पैदा करना सबसे आवश्यक है और खास करके क्लिनिकल लेवल पर जब पेशेंट के सामने हम दवा प्रयोग करके उसके इफेक्ट को उनको दिखा देंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा और फिर आयुर्वेद तो बिल्कुल ऐसा तेज उड़ेगा. और जितनी चीजें हैं ऐसे ही पीयूष जी की तरह से बहुत और भी लोग हो सकते हैं जो कि सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं. वो चीजें लाइट में आनी चाहिए, लोगों के जानकारी में आना चाहिए जिससे कि उसका सभी और भी लोग लाभ ले सकें, सोसाइटी उससे लाभ उठा सके. मैं इतना ही कहूँगा. थैंक यू. प्रणाम जी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड इंस्पायरिंग अस डॉक्टर साहब. बहुत बहुत धन्यवाद. अग्निहोत्री जी प्रणाम जी. Thank you sir. Thank you. Namaskar. Today we targeted Pushpadhanwa Rasa on our 410th webinar. Actually, whenever we start or any cricket match starts, may it be 2020, may it be one day or test match, we always start with the 0 run on the scoreboard. So it happens with our presentation at 6 p.m. we happen to be 0 as far as our mind is concerned, with no experience, no thought, no output of the discussion. And where will we stand? Nobody can predict. Nobody can predict that how much score will be scored in 2020 in one day or in test match. And this is what our situation is. Today, we ornamented with our so many senior floor guests. We would like to extend our respect to them. Professor C.V. Jha sir, Guruji,
Professor Madan Thangvelu ji, Professor BP Sharma Sahab, Dr. Pawan Kumar Sharma ji, Dr. Jagdishwar Doma ji, Ved Jayesh Thakkar ji, Miss Preeti Banerjee, Dr. Rampal Somani ji, Professor Vishnu Priya Das ji, Professor O.P. Gupta ji, Ved Rajan Patankar ji, Ved Naveen Kumar Gupta ji, and Dr. Tejinder Singh ji, along with our guest speakers. There were 3 in number. The first one is Dr. Piyush Kumar Dwivedi ji from Kolkata. Second is our Ved Parul A. Joshi ji from Gandhinagar. And third one, Dr. Pragyan Tripathi from Ujjain. So this was our basic theme of our today's match, and with the great referee of Professor Madan Thangvelu ji, along with the co-referee our Pawan ji. What I could infer out of whole this historical knowledgeful discussion, that the message which has been conveyed is there may be any medicine made up of any of the or so many ingredients, but the prescriber should be, and especially it is applicable on Ayurvedic preparation, that prescriber should be careful enough to prescribe the medicine as per that medicine's indication, rogadikar, again, rasgun vipak of the ingredients, along with the efficacy or karmukta of each and every ingredient, considering the age, the gender, the site or the part of nation or his habitat, along with the proper dose, anpan and sapan. This is the extract of the whole discussion. No experimentation, no extra enthusiasm. If anything is important and efficacy is bestowed upon that, but should be used carefully. So goes the case with Viagra. If it is a known fact that it is very effective, any person by mistake takes the liberty to take excess dose, results are fatal. This should be taken in a very careful manner. Since this topic is very sensitive, and it carries and it gives a lot of actions like boon. So considering these all important actions in mind, the prescriber should prescribe, and this is what been contributed by our today's guest speaker. If we just go for the name of the drug itself, the Pushpadhanwa Rasa, well defined by our all learned speakers and distinguished guests in their discussion, need not to repeat, but the sense is that the ghatak, the ingredient which are involved there, starting from the Rasa Sindur. So right from the Rasa Sindur, the other things are Nag, Bang, Loh, then our this important point which has been carried with these things, that Tejoshnatak, Tejoshamak, Vat Niyamak. Along with this thing, one should be very careful that we are not going to take the independent action of that ingredient which are there in the prepared formula. It is again to be taken. And till today, or in commonly, it is used that it is a good medicine for the say infertility or impotency, or the mood elevator with a psychological effect. But today's inputs from Dr. Parul Joshi made very clear that it is equally important and useful as per her own experience on the PCOD cases. And now the PCOD is a problem of even unmarried girls, even after marriage, even first delivery. After that, it is a so long process that right from the puberty, it will lead to the menopause. So this medicine, along with other puberty, if doing wonderful results, it should be promoted with the recommended dose, along with the other things in a form of decoction like Abhya and etc. So the knowledge which has been poured by our distinguished guests, like our Dr. Piyush Kumar Dwivedi, which he made very clear in that sense that if at all it is used
for which I would like to thank Dr. Our Pragyan Tripathi, who has always been very enthusiastic, that too on that day on Kamini Vidyavan Ras, and today also. His work on that Shalmali also, with the help of its flowers and its other part used, is equally important. So that can be encouraged. But again, I would like to say that this all today's knowledge is being given in a nutshell form, that as far as the theory is concerned, as far as the preparation of this Rasa is concerned, how many manufacturers are making it, how many companies are making it in India. Again, as Dr. Pawan Sharma told, that difference in the efficacy of the preparation, especially in reference to the bhasma, is still there, because as he referred that Rasa Tarangani made the things at some level in a form of the lower efficacy, while as Vaishya Jatnavali or our Rasa Samuchay, they were of a little bit higher status of say preparation. Truly told by Dr. Pawan Sharma ji that preparation or bhasma made in institute, that is simply in a very lesser quantity, say under 200 gram or 250 gram, and that may be transferred to our hospital, especially I am referring our hospitals, Registrar's pharmacy. It is being book transferred from Registrar's department, that to from undergraduate department or post-graduate department to the hospital for a public common man distribution. As far as the Vedda is concerned, Vedda is the preparation for their his own expenses or for their his own use. As far as the factories are concerned, they are completely professionally making these things. Little to wait for the 100 put or 1000 put, 1000 is a daydream. It's very difficult. It is not possible today. I do remember that the father of my Guruji, under whom I did my post-graduation, he was very renowned Vaidya, and he was having so many preparations which our Guruji used, and he handed me over for further use. So it runs in the generations. So the son or the student, they are of equal nature, of equal status. So we have also given some Makaradhwaj or Chandrodaya of small quantity, say hardly half gram or so. So this is the harder side of our Ayurvedic preparation. So today's submission by our guest with a special reference to the Pushpadhanwa Rasa, as Dr. Madam Joshi told, that to whom medicine should be given. Those who are not willing, those simply because of the background of the family, so it should also be taken by the attending clinician, so that the fame be restored. Otherwise, the wastage of medicine along with the wastage of time will equally be of no use. So in that way, both the things to be taken into consideration. Dr. Pragyan told something very important regarding the other preparations which can be used in reference to the, say, Falagrat or Hunsvan Yoga or Shrishti Chir. These are the quality things if it is taken beforehand for use. If it is collected in a proper way, then it will be okay. Dr. Parul also underlined regarding the Griha Shanti or say Havan. These things are in a regular manner in our society or in our custom. So traditionally, if it is not having any support of the medicinal use, it goes on. Hearing of Satyanarayana Katha or chanting of mantras, this is a common feature in the families running in our different systems. So that is not a problem. Our issue is that how we can be more and more practical as far as the used medicines are concerned. So our submission regarding the discussion and the presentation of our guest speakers is only this much. Things are very good there in the books. Things are very good there in the use, indications and preparations. But where to use, how to use, how much to use, on whom it is to be used, that is to be taken in consideration beforehand, so that the quality of medicine
the knowledgefulness of the physician, attending physician be restored, and the beneficiary must be resulted in a positive manner. This is what our today's assumption. So thank you very much. Our greetings to our presenters and our regards to our all the discussion panel. Thank you so much. Over to Professor Vandan Sarji. Thank you. Namaskar. नमस्कार नमस्कार. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. आज बहुत अच्छा डिस्कशन रहा. मदन सर. पवन जी, आज I want to thank, number one, I want to thank you, पवन जी. आपने इतनी कमाल की वो करके आज पूरा P करके लगाया. आपके नाम 5P of marketing, product placement, price, promotion and people. सब P लगाते, सबको ले आया आज एक साथ. और all the presentations were amazing. I liked Parul ji's wide description. उसका पूरा वो जो the context in which we must operate, not just to look at it in terms of the why, but the wider context. It's a very important thing. Or I'm so happy that Jasab keeps joining us and he continues to be with us and adds his apologies. थोड़ा सा Jasab की वो telephone में पता नहीं आज क्या हुआ, थोड़ा सा वो distraction. So apologies for that, but we will correct this. We will discuss with Jasab and we will rectify this problem. Sir, pages 7 pages. Again P. Pages 7. Pages 7. सर ये सब पेज संभाल के रखिएगा. हमेशा ये संभाल के रखिएगा. काम आने वाले हैं. कंपेंडियम बनेगा आपके अंडर गाइडेंस. लड़के मैं दूंगा महीना भर बाद. 3 PhD सबमिशन हो गया है. जय हो जय हो जय हो. आपकी जय हो. दिखलाएंगे आप किसी दिन लेके बैठेंगे, दिखला देंगे, एक ग्लिम्स दे देंगे आपको. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अग्निहोत्री जी, इसमें जो सबसे मोटा चीज जो आज जो निकला जी कि वो ट्रेनिंग की तरफ जो झा साहब ने जो बताया कि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए कि हाउ टू डू क्लिनिकल प्रैक्टिस. अगर हमारे वैद्य लिबरल होंगे, बच्चों को प्यार देंगे जैसे इन्होंने सौरभ को दिखाया था पीयूष जी ने, तो आएगी. एक से अनेक हो जाएगी. एक को हम बहुत श्यामा, हम एक हैं, हम अनेक होंगे तो हो जाएगी. आ जाएंगे जी, सबको ले आएंगे. अंत करने के पहले मैं परसों की सूचना दूं. परसों कामिनी धीमान जी है और लक्ष्मी देई जी है, इनोवेशंस इन गायनेकोलॉजी. और उसके बाद नेक्स्ट डे आयुष मार्क्स स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम. पूरी गवर्नमेंट की टीम अपन को गाइड करेगी सर. थैंक यू. गुड नाइट सर. पवन जी शुभ रात्रि. जहाँ साहब शुभ रात्रि. गुड नाइट. शुभ रात्रि. पीयूष जी गुड नाइट. सबकी